بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ جو ناول شروع کر رہی ہوں اس کا نام ہے یہ ہونا ہی تھا بائے سیما مناف۔ سب کچھ ٹھیک تھا اگر وہ اس گھر میں نہ ہوتا۔ پاپا اسے سمیر انکل کے ہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے کچھ زیادہ فکر مند نہ تھے۔ سمیر میرے بچپن کا دوست ہے، تمہارا خیال رکھیں گے سب۔ سمن بھابی بھی بہت محبت کرنے والی خاتون ہے۔ جانتی ہوں پاپا، کئی بار مل چکی ہوں سب سے، لیکن اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ دوسرے وہاں سمیر انکل کا وہ بگڑا ہوا بیٹا بھی تو رہتا ہے، تنگ مزاج، مغرور اور غصیلا۔ یاد ہے فائق بھائی کی شادی پر کتنا ہنگامہ کیا تھا اس نے۔ نمرا بھابی کی خالہ زاد بہن کو کس طرح ذرا سے مذاق پر سب کے سامنے بری طرح جھڑک نہیں بلکہ لتاڑ دیا تھا۔ توبہ کیسے رو رہی تھی وہ، کتنی انسلٹ ہوئی تھی اس کی۔ اس نے کہا تو لڑکیوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے بیٹا، کیا ضرورت تھی بلا وجہ کسی لڑکے سے مذاق کرنے کی؟ پاپا نے کہا تو اسے لگا جیسے در پردہ وہ اسے سمجھا رہے ہوں، لیکن پاپا وہ کوئی اجنبی تو نہیں، اس کی کزن کا دیور تھا۔ ایسے موقعوں پر ایسے مذاق تو چلتے رہتے ہیں۔ مذاق ہمیشہ سامنے والے کو دیکھ کر کرنا چاہیے کہ وہ اسے سہار بھی سکے گا یا نہیں۔ دوسرے میں مہندی جیسی رسموں کا اس لیے قائل نہیں ہوں کہ اس میں ذرا سی بات پر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر تم نے کون سا سدا وہاں رہنا ہے، 1 سال کی بات ہے، تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے بس میں تمہیں فوراً بلوا لوں گا۔ پڑھائی تو تم وہاں بھی کر سکتی تھی، لیکن اچھا ہے تمہارا سال ضائع نہیں ہوگا۔ 1 سال، اسے پھر یاد آ گیا کہ ابھی اس کا ایم اے مکمل ہونے میں پورا سال باقی تھا۔ وہ اکنامکس میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ پاپا کو اپنی کمپنی کی طرف سے انگلینڈ بھیجا جا رہا تھا۔ ماں اور کسی بھی بہن بھائی کے نہ ہونے سے وہ پاپا کے بہت نزدیک تھی۔ انہوں نے بھی صرف اس کی وجہ سے دوبارہ شادی کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ سمیر انکل اور ان کے گھر والوں نے اس کے وہاں رہنے پر بہت خوشی کا اظہار کیا تھا۔ فائق بھائی، نمرا بھابی اور دونوں بھائیوں کی اکلوتی بہن سائرہ سب ہی خوش تھے۔ سمیر انکل نے پاپا کے جانے سے 1-2 دن پہلے انہیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ اس روز وہ پاپا کے ساتھ اپنا ضروری سامان وغیرہ لے آئی تھی۔ سب موجود تھے، ایک وہی نہیں تھا۔ تمہارے ہلاکو بھائی کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے، اس نے سرگوشی میں سائرہ سے پوچھا۔ ہوں گے کہیں، اچھا ہے گھر میں سکون ہے، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ انہیں میری یہاں آمد کا علم ہے، کہیں بار نہ گزرے ان کے مزاج پر۔ انہیں کیا، ہمارے ہاں کوئی آئے کوئی جائے یا ہم میں سے کوئی کہیں چلا جائے، ان کی بلا سے انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ پہلے بھی وہ غصیلے اور ضدی تھے، لیکن ایسے نہیں تھے۔ اب تو جیسے ہری مرچیں چبائے رکھتے ہیں، ہر وقت جب بات کرو الٹا جواب ملتا ہے، یا پھر طنزیہ باتیں، دل جل کر رہ جاتا ہے۔ میں نے تو ڈر کر بات ہی کرنی چھوڑ دی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، تم تو بہن ہو ان کی، ایسا تھوڑی کرنا چاہیے۔ چھوڑو یار، کوئی اور بات کرو۔ سائرہ کچھ زیادہ ہی بیزار تھی، شاید اوکے، اسے بھی کون سا اس کی ذات سے دلچسپی تھی۔ دوسرے دن صبح ہی سے اسے ہر شے اجنبی لگنے لگی تھی۔ پاپا نہیں ہوں گے اور میں یہاں تنہا، اس سوچ سے ہی اس کا دل بند ہونے لگتا، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی۔ ننیال پنڈی میں تھا اور پاپا کا کوئی سگا رشتہ دار نہیں تھا، وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے تھے۔ والدین کی وفات کو بھی کئی سال گزر چکے تھے۔ یہاں ایک سمیر انکل کا ہی ایسا گھرانہ تھا جہاں وہ اسے بنا کسی جھجک کے چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ سمیر انکل اور فائق بھائی، ماں، سمن آنٹی اور سائرہ کے صبح ہی پہنچ گئے تھے۔ سمن آنٹی کا کھانا وغیرہ بھی گھر سے بنوا کر لے آئی تھیں، جو سب نے کافی افسردہ ماحول میں کھایا۔ خود پاپا کی پلکیں بار بار بھیگ رہی تھیں، پہلی بار تھا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے اتنے عرصے کے لیے جدا ہو رہے تھے۔ تم فکر مند مت ہو، اریبہ بہت خوش رہے گی میرے یہاں، وہ میرے لیے سائرہ سے کم نہیں ہے۔ سمیر انکل نے انہیں تسلی دی تو وہ بدقت مسکرائے۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو اللہ کے بعد تمہارے بھروسے اسے چھوڑے جا رہا ہوں۔ چونکہ سامان وہ کل ہی لے گئی تھی، اسی لیے ایئرپورٹ سے نکلنے سے پہلے ضروری سامان ایک کمرے میں رکھ کر گھر کو اچھی طرح لاک کر دیا گیا۔ اس رات سائرہ نے اسے اپنے کمرے میں سلایا، حالانکہ سمن آنٹی نے اس کے لیے ایک کمرہ اچھی طرح سے سیٹ کر دیا تھا۔ دیکھ لو، تمہیں یہاں آرام محسوس ہو تو کیا ضرورت ہے الگ کمرے میں رہنے کی؟ اچھا ہے، دونوں مل کر انجوائے کیا کریں گی۔ میں بھی اکیلے رہ رہ کر بور ہو گئی ہوں، سائرہ نے کہا۔ مجھے رات گئے جاگ کر پڑھنے کی عادت ہے، تم جلد بیزار ہو جاؤ گی۔ کوئی بات نہیں، جاگنے کی مجھے بھی عادت ہے، لیکن ٹی وی دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں۔ وہ ہنسی۔ پھر تو میں قطعی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ٹی وی ایک حد تک برداشت ہوتا ہے مجھ سے، ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے رہنے والوں سے بڑی الجھن ہوتی ہے مجھے۔ پھر تو شاہد بھائی سے خوب نبھے گی تمہاری، کتابوں کے وہ بھی بڑے شوقین ہیں، ٹی وی سے انہیں بھی تمہاری طرح خاصی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں البتہ تم ان کی طرح آدم بیزار اور بد مزاج نہیں ہو۔ اریبہ کو اس کی باتیں سن کر خاصی حیرت ہوتی تھی جب وہ بڑے بھائی کے لیے اس انداز میں گفتگو کرتی تھی۔
خیر مجھے کیا، ہوں گے ایسے ہی، تب ہی تو گھر والے اس قدر بیزار رہتے ہیں، اس نے سوچا اور چادر اوڑھ کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ لیٹتے ہی پاپا کا خیال اس کی پلکوں پر در آیا، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ایک لمبا عرصہ گزارنا ہے پاپا آپ کے بغیر، اور جانے یہ کیسے کٹے گا۔ یونیورسٹی اسے اور سائرہ کو فائق بھائی ڈراپ کر دیتے، واپسی پر وہ دونوں پوائنٹ سے ہی واپس آ جاتی۔ کھانا کھا کر جو کمرے میں گھستی تو شام کی خبر لیتی۔ شام کی چائے کا اہتمام سائرہ کی ذمہ داری تھی، وہ بھی اس کے ساتھ کچن میں گھس جاتی۔ دونوں مختلف کتابوں کو گنگال کر اسنیکس تیار کرتی، جو کبھی تو بہت اچھے ہوتے، کبھی حلق سے اتارنا مشکل ہو جاتے، لیکن دونوں کو ہی پکانے کا شوق تھا۔ رات کے کھانے میں بھی دونوں نمرا بھابی کا پوری طرح سے ہاتھ بٹاتی۔ سمن آنٹی اس بات کے سخت خلاف تھی کہ خالی نمرا بھابی کچن میں لگی رہیں اور سائرہ دلچسپی نہ لے، خود وہ کچن کے بہت سارے کام نپٹا دیا کرتی تھیں۔ رات میں کھانے کے بعد چائے یا کافی کا دور چلتا، کچھ دیر لان میں یا گلی میں چہل قدمی ہوتی، پھر سونے کی تیاری۔ سائرہ رات گئے تک ٹی وی سے فارغ ہو کر سوتی تھی، رات کی کسر وہ دن میں سو کر پوری کر لیا کرتی تھی۔ اریبہ کو سمیر انکل کے گھر آنے کا ماحول بہت پسند آیا تھا، سب ہنس مکھ تھے، ہلکے پھلکے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے، کوئی کسی میں عیب تلاش نہیں کرتا تھا، غلطیاں نظر انداز کر دی جاتی تھی، صلاحیتوں کا اعتراف کھلے دل سے کیا جاتا تھا۔ ساس، نند اور بہو کا رشتہ بھی یہاں موجود نہیں تھا، سوائے شاہد کے ہر شخص ایک دوسرے سے خوش تھا، گھر والے اس سے پریشان تھے تو وہ ان سے بیزار۔ صبح کا نکلا رات گئے گھر میں گھستا، جانے کون کہاں زمانے بھر کی کھاک چھانتا رہتا تھا۔ سمن آنٹی اس کے لیے جاگا کرتی، کھانا وہ زیادہ تر باہر کھا کر آتا۔ اس کا اریبہ سے سامنا بھی ایک دو بار چھٹی کے روز ہی ہوا تھا، جب وہ دیر سے سو کر اٹھتا تھا، اس روز بھی وہ سارا دن غائب رہتا۔ اسے بڑا عجیب لگتا، جس گھرانے کے افراد ایک دوسرے سے اس قدر محبت اور قربت کی ڈوری میں بندھے ہوں، وہاں ایک فریق کا گھر سے اتنا اکتانا بڑی عجیب سی بات تھی، لیکن اس معاملے میں کسی سے کچھ پوچھنا یا دلچسپی لینا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس روز چھٹی تھی، اس کا خوب دیر تک سونے کا پروگرام تھا، لیکن شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ سمیر انکل کے گھر میں چیخو پکار، اسے بڑی حیرت ہوئی، جلدی سے اٹھ کر چپل پیروں میں ڈالی اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ سامنے والے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیوں گھسا کوئی میرے کمرے میں؟ جب میں نے کہا ہے کہ میرے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا، کیوں کی صفائی؟ یہ شاہد کی آواز تھی، وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا۔ پلیز شاہد بیٹا، آہستہ، گھر میں ایک مہمان بھی موجود ہے، کیا سوچے گی وہ ہمارے بارے میں؟ سمن آنٹی اسے دبے لفظوں میں سمجھا رہی تھی۔ سوچا کرے، لیکن میرے کمرے کی چیزیں کیوں ادھر ادھر ہوئیں؟ میں دروازہ لاک کرنا بھول گیا تو موقع مل گیا آپ لوگوں کو، رات میں نیند میں یوں ہی سو گیا آ کر، صبح آنکھ کھلی تو دیکھا ہے، پھر کچھ رکھ دیجیے گا میرے کمرے میں، پھر لگا دیجیے گا الزام۔ نہیں بیٹا، کوئی کچھ کیوں کرے گا تمہارے ساتھ، یہ تو نمرا نے صفائی کروائی ہے، کہہ رہی تھی بہت گندا ہو رہا تھا تمہارا کمرہ، بہت پھیل رہا تھا۔ سمن آنٹی کا اتنا کہنا تھا کہ اس نے کمرے میں موجود ہر چیز اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی۔ کیوں ہاتھ لگایا میری چیزوں کو، کیوں سمیٹا؟ میں ہر چیز بکھرا دوں گا۔ وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ سمیر انکل بھی اندر چلے آئے، اب وہ بلند آواز میں اسے ڈانٹ رہے تھے۔ بہت تماشا کر لیا تم نے شاہد، ذرا سی بات پر اتنا ہنگامہ، نہ کسی کا خیال نہ کوئی تمیز، اس قدر شور، بدتمیزی، میں نے بہت چھوٹ دے دی ہے تمہیں، اب اگر مزید تم نے کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، انسانوں میں رہتے ہو انسانوں کی طرح رہو، جنگلی جانوروں کی طرح بیہیو نہ کرو۔ اندر خاموشی چھا گئی، شاید وہ سمیر انکل سے ڈرتا تھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس کے کمرے کی صفائی کروانے کی؟ فائق بھائی نے نمرا بھابی سے کچھ ناراضگی سے کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا، میں تو جیسے پورے گھر کا خیال رکھتی ہوں اسی طرح اس کے کمرے کو بھی صاف کر دیا، روز بند ہوتا تھا، کل کھلا مل گیا تھا۔ وہ منمنائی۔ تو اب بھگتو، دیکھ نہیں رہی اس نے کیا فساد برپا کر دیا ہے؟ وہ غصے میں اندر چلے گئے، پیچھے پیچھے نمرا بھابی بھی چلی گئی۔ کمال ہے، اتنی سی بات پر اتنا ہنگامہ، اس نے حیرت سے سائرہ سے کہا۔ وہ ایسے ہی ہیں، تمہیں بتایا تو تھا۔ وہ بھی کندھے اچکاتی ہوئی دوبارہ سونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ فائق بھائی اپنے آفس کے کام سے لاہور گئے ہوئے تھے 2 دن کے لیے۔ سمیر انکل نے شاہد کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ صبح آفس جانے سے پہلے انہیں یونیورسٹی چھوڑ دے۔ آئی ایم سوری امی جان، میں صبح جلدی نکلتا ہوں، مجھے آفس سے دیر ہو جائے گی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ کوئی نہیں ہوگی دیر، واپسی پر میں بھی بچیاں بس میں لٹک کر آتی ہیں، بس میں نے کہہ دیا، صبح آپ انہیں چھوڑیں گے۔ ان کے حتمی لہجے پر وہ ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ اریبہ جلدی کرو ورنہ شاہد بھائی ناراض ہو جائیں گے، اتنی مشکل سے تو امی جان نے انہیں تیار کیا ہے۔ سائرہ نے کوئی تیسری مرتبہ کہا تو وہ چڑ گئی۔ ہونے دو، زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے نا کہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو چلے جائیں، ہم پوائنٹ سے بھی جا سکتے ہیں۔ صبح ہی صبح بس میں، سائرہ کی ویسے بھی بس میں سفر کرنے سے جان جاتی تھی، لیکن گھر میں 2 گاڑیاں تھیں۔
एक फाइक भाई अपने ऑफिस ले जाते थे, दूसरी शाहिक ले जाता था। हालांकि सारा दिन इन लोगों को बहुत तंगी होती थी। खुद अरीबा के पापा के पास एक गाड़ी थी जो उन्होंने जाने से पहले बेच दी थी, लेकिन अब वो सोच रही थी कि पापा को खत लिखेगी कि वो इसे गाड़ी के लिए पैसे भिजवा दें। तो तुम्हारी तैयारियों में कौन सा फर्क पड़ जाएगा। शाहिक ने तीसरा हार्न दिया तो सायरा उसे तकरीबन घसीटती हुई बाहर ले आई। वो बड़े खौफनाक मूड में ड्राइविंग सीट पर बैठा था। कब से हार्न बजा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मुझे ऑफिस से देर हो जाएगी। उसने अरीबा को कतई नजरअंदाज करके सायरा को बुरी तरह डांटा। वो बेचारी सहम कर रह गई। ऑफिस की चाबियां आपके पास होती हैं क्या, कि आपके जाए बिना ऑफिस नहीं खुलेगा? वो इंतहाई संजीदगी से कहकर दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठने लगी। आपने शायद मजाक करने की कोशिश की है। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में एक नजर उस पर डालकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जी नहीं, मजाक मैं उस शख्स से करती हूँ जिसमें मजाक सहने की ताब हो। मैंने तो इंतहाई संजीदगी से अपनी मालूमात में इजाफे के लिए एक बात पूछी थी। वो बगैर तपे आराम से बोली। अजनबी लड़कों के बारे में मालूमात हासिल करने का बहुत शौक है आपको। बात यकीनन सुलझाने वाली थी। जी नहीं, आप अजनबी होते तो मैं कतई आपकी गाड़ी में बैठने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। आप समीर अंकल के बेटे हैं, खुद पसंद सही लेकिन काबिल एतबार हैं। उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। सायरा उनकी इस जुबानी जंग पर ची बजी हो रही थी, लेकिन सवाए खामोश रहने के, कुछ ना कह सकने पर मजबूर थी। काबिल एतबार। शाहिद ने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाए। अरीबा ने देखा जब्त के बावजूद उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आपसे किसने कहा कि मैं काबिल एतबार हूँ? आप क्या जानती हैं मेरे बारे में? कुछ नहीं, पूछे मेरे घर वालों से। एतबार की हर मंजिल ढा चुका हूँ मैं, कुछ नहीं रहने दिया मैंने। यकीन, एतबार, भरोसा। फिर आप कैसे एतबार कर सकती हैं मुझ पर? उस पर जैसे फिर से जुनून तारी हो गया। भाई, शाहिक भाई। सायरा ने डरते डरते उसके स्टीयरिंग व्हील पर रखे हाथ पर हाथ रखकर उसे शांत करना चाहा। मत हाथ लगाओ मुझे, वो घुटी घुटी आवाज में चिल्लाया। प्लीज शाहिक भाई, यहाँ सड़क पर तमाशा मत बनवाएं। चलें, देखें पीछे गाड़ियां जमा होकर हार्न बजा रही हैं। सायरा के कहने पर उसने खुद को संभाला, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्या कोई मसला है शाहिक भाई के साथ, या कोई बात ऐसी? आम आदमी जरा सी बात पर यूं बिहेव नहीं करता। उसने घर वापसी के लिए पॉइंट की तरफ जाते हुए सायरा से पूछा तो वो खामोश ही हो गई। चलो, नहीं बताना चाहती ना सही, लेकिन इन्हें इस हाल में यूं तन्हा छोड़ देना ठीक बात नहीं है। इस तरह वो और उलझ कर रह जाएंगे। देखा तो है तुमने कैसे चिरागपा हो जाते हैं जरा सी बात पर, तहजीब का दामन छोड़ बैठते हैं। कौन मुंह लगे उनके, सिर्फ अम्मी ही बात कर सकती हैं उनसे। अब्बू जान कभी कभी दखल देते हैं, लेकिन उनसे ही ठीक रहते हैं वो। फिर उनके साथ हुआ भी तो। वो कहते कहते रुक गई। तो फिर समीर अंकल को चाहिए एक दिन बिठाकर मसला पूछे उनसे, समझाएं प्यार और नरमी से। मुझे तो ये कुछ कुछ साइको केस लगते हैं। उसकी बात पर सायरा ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली। हैरत है, पढ़ती तो आप इकोनॉमिक्स हैं, मगर इस वक्त साइकोलॉजी की स्टूडेंट लग रही हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप खुद सोशल वर्क में एमए कर रही हैं। आपके अपने घर के एक फर्द को आपकी हमदर्दी की जरूरत है, लेकिन आपकी बेनियाजी काबिल दीद है। उसने जवाबन जलकर कहा तो वो अफसुर्दा सी हो गई। तुम क्या समझती हो अरीबा, मुझे शाहिद भाई से मोहब्बत नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनका रवैया मेरे हौसला पस्त कर देता है। वो अपनी जात में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। तुमने देखा नहीं अभी उस रोज भाभी की हमदर्दी का क्या जवाब दिया था उन्होंने? भाभी ने सफाई करवाई तो गुस्से में कमरे की हर शय फैला दी उन्होंने। फिर भी तुम बहन हो, वो भी इकलौती, वो यकीनन तुमसे मोहब्बत करते होंगे। तुम तवज्जो दिया करो उन पर, उनके काम किया करो, लौट आएंगे वापिस। वैसे सायरा, क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, गुस्सावर तो हमेशा से हैं, लेकिन पहले हम सबके साथ हंसा बोला करते थे, इंजॉय करते थे। मुझसे तो बहुत दोस्ती थी, लेकिन बाद में वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गई। अरीबा ने महसूस किया कि वो उससे कुछ छुपाना चाहती है, इसीलिए उसने खुद ही मौजू तब्दील कर दिया। वो जबरदस्ती किसी के घरेलू मामलात में मुदाखलत को वैसे भी पसंद नहीं करती थी। इस रात वो दोनों टीवी पर कोई मूवी देखने में मसरूफ थीं। अरीबा के हाथ में एक किताब थी जिसे वो पढ़ने के साथ साथ टीवी पर भी नजर डाल रही थी। उसी लम्हे बेल हुई। अरीबा, फाइक भाई और भाभी होंगे। गाड़ी रुकने की आवाज आई है। प्लीज दरवाजा खोल दो, इतनी दिलचस्प मूवी है, सब निकल जाएगा। अम्मी और आपी जान भी सो चुके हैं। सायरा ने टीवी पर नजरें जमाए जमाए कहा तो मजबूरन उसे उठना पड़ा। हालांकि वो खुद खासी डरपोक थी। यूं रात गए अपने कमरे से बाहर निकलने में ही उसकी जान जाती थी। मेन गेट खोलकर वो एक तरफ हो गई। गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो उसे पता चला कि वो शाहिक था। उसने गेट बंद करके अंदर की जानिब कदम बढ़ाए तो उसकी घुटी घुटी आवाज पर चौंक गई। सायरा, सायरा, अंदर से अभी जान को बुला दो प्लीज। वो अंधेरे की वजह से या तबीयत की खराबी की वजह से उसे सायरा समझ रहा था। क्या हुआ, क्या हुआ शाहिद भाई?
वो घबरा कर गाड़ी की खिड़की से सर अंदर डालकर उसे देखने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी हालत ठीक ना हो। शाहिक ने उसे अब देखा था। प्लीज अंदर से किसी को बुला दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, उसने अंदर की जानिब दौड़ लगा दी। कुछ ही देर में सब जमा हो गए। समीर अंकल और समन आंटी के सहारे वो बामुश्किल अंदर आ गया। शदीद बुखार से उसका जिस्म झुलस रहा था। किस कदर तेज बुखार है, और ये इस हालत में कहां कहां अजियत दे रहा था खुद को। समन आंटी बर्फ की पट्टियां उसके माथे पर रखते हुए मुसलसल रो रही थीं। जाने किस जुर्म की सजा दे रहा है हमें, अब जबकि हर बात खत्म हो चुकी है, ये भूल क्यों नहीं जाता। समीर अंकल तासुब से कह रहे थे। इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है सब कुछ? आप सबने तो एकदम जमीन खींच ली थी इसके कदमों तले से। क्या जानते नहीं थे कि वो कैसा है? सारी उम्र देखते आए थे। एक जरा सा वाक्य ने हर बात भुला दी हम लोगों को। बच्चा है, इस उम्र में हर एक से गलतियां हो जाती हैं। छोड़ो पिछली बातें, ये डॉक्टर क्यों नहीं आया अब तक? अरीबा ने एक बार फिर महसूस किया कि उसकी वजह से समीर अंकल ने बात टाल दी थी। वो फौरन वहां से बाहर निकल आई। 2-3 दिन वो बुखार में फुनकता रहा, इसलिए ऑफिस भी ना जा सका। इतने दिनों में पहली बार अरीबा ने उसे घर में देखा था, वो भी बीमारी की वजह से। जाने क्यों चाहने के बावजूद वो अब तक उसकी खैरियत पूछने उसके कमरे तक भी ना जा सकी थी। उसके रवैये से डर जो लगता था, लेकिन इस वक्त टीवी लाउंज में कंबल में घुसकर उसे टीवी देखते पाकर वो हिम्मत करके उसके नजदीक आ गई। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। एक नजर उस पर डालकर वो फिर से टीवी देखने लगा। अपनों से, अपने घर से फरार इंसान को यूं ही थका देता है, फिर यही थकन उसे बीमार कर डालती है। वो फिर बोली, आपको मेरी बीमारी से, मेरी थकन और फरार से ऐसी क्या दिलचस्पी है, पूछ सकता हूँ? उसका अंदाज इस कदर तलख था कि उसका हलक तक कड़वा हो गया। इंसान को उसके खालिक ने घर और मुआशरे की तख्लीक का हुक्म दिया है, इसीलिए एक इंसान दूसरे इंसान से बेगाना नहीं रहता, एक यगांगत और रवादारी की डोर में बंधा रहता है आपस में। इसी नाते से आपको समझाने की कोशिश की थी। आप अपने लिए ना सही तो अंकल और आंटी के लिए अपने इस तकलीफदा खुद साख्ता खोल से बाहर निकल आए। दूसरों को तकलीफ देकर आपको जो सुकून मिलता है, दूसरों को मोहब्बत बांटने में इससे ज्यादा मिलेगा। शाहिक ने कुछ हैरत से उसे देखा, जो उसकी इस कदर तलख बातों के जवाब में भी हमदर्दी से उसे कुछ समझा रही थी। मुझे अफसोस है अरीबा बीबी कि मेरे पास जो कुछ है वो ही बांटता हूँ। खुदा ने तो इंसान का दिल बड़ी मोहब्बतों से गूंद कर तख्लीक किया है। खुदा जाने नफरत, तासुब, कीना जैसे जज्बे कैसे सिमट आते हैं इसमें। जब आपको अपनों की जानिब से बहतान, तोहमत, इल्ज़ाम तराशी, बेवफाई और नफरत के तोहफे मिले, तो आपका दिल मोहब्बत और नरमी जैसे एहसास से कैसे भरा रह सकता है। आज कितने अरसे बाद वो यूं किसी से खुलकर बात कर रहा था। शायद जानता था कि सामने वाला उससे मुखलिस है और उसकी जात को किरची किरची करने वालों में शामिल नहीं है। दिलों में बाल आ जाते हैं, लेकिन इस बना पर सदा सारी जिंदगी के लिए हर एक से खुद अपने आप से खफा हो जाना कहाँ की अक्लमंदी है। जिंदगी इतनी अर्जा नहीं है शाहिक भाई, एक बार मिलती है, उसे अपने ही हाथों बर्बाद कर देना खुदकुशी का एक तरीका है, और खुदकुशी हमारे मजहब में हराम है। बस, उसका चेहरा फिर अजीब से एहसास से दो चार हो गया। शायद इसे फिर वही याद आने लगा था। काफी है, अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, और प्लीज आइंदा मेरी जात को अपनी तवज्जो का मरकज ना बनाएं। आप क्या समझ रहे हैं? अरीबा को पहली बार सख्त गुस्सा आ गया कि मुझे आपसे कोई दिलचस्पी है, तभी आप वाकई जहनी तौर पर बीमार हैं कि हमदर्दी और खलूस जैसे जज्बों को समझ नहीं सकते। वो एकदम वहां से चली गई। शाहक ने अपने बाजों में मुंह छुपा लिया। उसके अंदर फिर टूट फूट शुरू हो चुकी थी। हाँ हाँ, मैं जहनी तौर पर बीमार हूँ। मुझे खलूस की कदर नहीं है, मोहब्बतों की समझ नहीं है, सिर्फ एक हस्ती की वजह से। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे मुखलिस दोस्तों को खो रहा हूँ, अपने घर वालों को खो चुका हूँ, सबसे बढ़कर अपनी जात को खो चुका हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास, खाली हूँ मैं अंदर से। जब मैं उसे फाइक भाई के सामने हंसता मुस्कुराता देखता हूँ तो अपनी बर्बादी का एहसास बहुत बढ़ जाता है। मेरी तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार मुझे इन हालों में पहुंचाकर खुद किस कदर पुरसकून और मुतमईन है, और मेरे घर वाले इन्हें नहीं मालूम कि वो एक बड़ी ड्रामा आर्टिस्ट को मजलूम और मासूम समझते हैं। मैंने किस कदर चीख चीख कर सबको बताना चाहा, समझाना चाहा, लेकिन किसी ने मेरा एतबार नहीं किया। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ और परवरिश करने वाले बाप तक की आंखों में मैंने अपने लिए शको शुबे के साए देखे, और मैं अंदर से ढह गया, टूट गया। क्या इतना जानते थे वो मुझे कि मैं ऐसा हूँ, इतना बदकिरदार, अपने ही घर में जहाँ मेरी जवान बहन रहती है, जहाँ मेरी मुकद्दस माँ रहती है, वहाँ मैं। काश अम्मी सब यकीन कर लेते, लेकिन आप एक बार कह देती कि मेरा बेटा
ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये सब गलत फहमी है, कोई साजिश है। लेकिन आपने तो मेरा यकीन नहीं किया। मैं तो सदमे से गंग होकर रह गया था, कुछ समझ ही ना पाया ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई गलत फहमी है या साजिश? हाँ, ये साजिश थी। बहुत अरसे बाद समझ में आया मेरे। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी वो, और इसमें कामयाब रही। उसने जो चाहा हासिल कर लिया, लेकिन मुझे बर्बाद करके। वो मुझसे कह देती, मैं उसके रास्ते से हट जाता। अपनी जात को किसी पर जबरदस्ती सवार करना मुझे कभी पसंद ना था, लेकिन उसने छुटकारा हासिल करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया, उसने मुझसे मेरा अपना आप छीन लिया। कुछ नहीं रहने दिया मेरे पास। उसे फिर से वही बातें, वही मंजर याद आने लगे। उन दिनों फाइक भाई के अमेरिका जाने के बाद वो बहुत अफसुर्दा रहने लगा था। वो थे भी तो इतने अच्छे, मोहब्बत करने वाले। उसे हर हर पल उनका साथ, उनकी बातें याद आती। याद तो सायरा भी उन्हें बहुत करती थी, लेकिन फितरतन लापरवाह थी, इसलिए मसरूफ हो जाती। जबकि वो हमेशा से बहुत हसास था। इन्हीं दिनों सैफ मामू दुबई से वापस पाकिस्तान चले आए। कुछ दिन उनके यहाँ ठहरे। अमीना, मुमानी, निमरा भी उनके साथ थी। इन सब में वो काफी बहल गया। वक्त कैसे कट जाता था पता ही ना चला। लेकिन जिस रोज उसे पता चला कि सैफ मामू ने अपना घर ले लिया है और अब चंद दिन में वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसका दिल फिर से अफसुर्दगी के एहसास से दो चार हो गया। और जब निमरा ने भी उससे इन्हीं जज्बात का इजहार किया, तो वो हैरत से उसे देखने लगा। क्यों, तुम्हें दुख नहीं होगा हमारे जाने का? वो दुख से कह रही थी। हाँ, वो तो होगा, लेकिन तुम्हारा घर कौन सा दूर है, कुछ देर की ड्राइव है। आया करना, हम लोग भी आया करेंगे। वो खुद को संभाल कर उसे समझाने लगा। लेकिन हर वक्त का साथ तो ना होगा। तो क्या तुम हर वक्त का साथ चाहती हो? वो शरारत से उसके चेहरे को बगौर देख रहा था, जहां अफसुर्दगी के साए लहरा रहे थे। मेरा ये मतलब तो नहीं था। वो झेम कर मुस्कुराई। फिर क्या मतलब था? साफ साफ बता दो, मुझे आसानी होगी। हर बात मैं ही बताऊं? तुम खुद नहीं समझ सकते? वो उठकर वहां से जाने लगी। तुम समझा दो तो क्या बुरी बात है। शाहिक ने उसका लहराता हुआ आंचल थाम लिया। ये ही कि मैं यहाँ मुस्तकिल रहना चाहती हूँ, और एक तुम हो कूड़ मग्ज, समझते ही नहीं। वो उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के जज्बात देख चुकी थी, इसीलिए बिना झिझक कह बैठी। उसके लिए तो फिर अम्मी से बात करनी पड़ेगी। फिलहाल तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, बाद में, यानी मुस्तकबिल करीब में ऐसा मुमकिन हो सकता है। वो मुस्कुराया। उस वक्त वो खुद को बहुत खुशनसीब समझ रहा था कि इतनी अच्छी और मुकम्मल लड़की उसे पसंद करती थी। क्या मुमकिन हो सकता है मुस्तकबिल करीब ने? सायरा अचानक कान टपकी थी। तुम्हारी एंट्री हमेशा गलत मौकों पर ही होती है। शाहिक ने मुंह बनाया तो निमरा उसकी जिल्लाहट पर हंस दी। फिर शाहिक ने मौका देखकर अम्मी से बात कर डाली। अम्मी के जैसे दिल की कली खिल गई थी। सगे भाई की इतनी प्यारी बेटी उनके घर आ जाती, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती थी। लेकिन चूंकि दोनों पढ़ रहे थे, इसीलिए शादी उनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद करार पाई थी। बस चंद चीजों और मिठाई वगैरह के तबादले से ये बात तय हो गई थी कि वो दोनों अब एक दूसरे के हो चुके हैं। वैसे भी अभी फाइक भाई की शादी पहले होनी थी, वो इससे बड़े थे। असूलन तो फाइक भाई की शादी पहले तय होनी चाहिए थी, शाहिक भाई, लेकिन आप तो बड़े तेज निकले। खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की को ले उड़े। सायरा कभी कभी कहती तो वो हंस देता। जोड़े आसमानों पर लिखे होते हैं सायरा बीबी, और इनके कामों का वक्त भी पहले से तय होता है। हाँ, ये तो है। फिर फाइक भाई का क्या पता पाकिस्तान आते हुए एक अदद मेम भाभी लेकर आए हमारे लिए। उम्मीद तो नहीं है, उनका ज़ौक़ बड़ा आला है। कम अज़ कम भूरे तिलों वाली फीकी मेम उन्हें पसंद नहीं आ सकती। देखना, तुम जैसे गए वैसे ही लौट आएंगे, शाहिद यकीन से कहता। लाने दो ना भाई, जरा खानदानों वालों पर रोब पड़ेगा। कोई नहीं पड़ता रोब, सब मजाक उड़ाते हैं बेचारियों का। उर्दू में जाने क्या क्या कहकर, और वो मासूम ये समझकर गर्दन हिला हिलाकर मुस्कुराती रहती हैं कि हमारी तारीफ हो रही है। हाय बेचारियां, उन्हें ख्वामखा शौक होता है एशियन मर्दों से शादी करने का। हैंडसम जो इतने होते हैं एशियन मर्द, डैशिंग पर्सनैलिटी, चॉकलेटी हीरो, वो ख्वामखा गर्दन निकड़ा लेता। रहने दें भाई, फिर तो फाइक भाई बिल्कुल बचकर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी के आगे तो यहाँ की लड़कियां भी मरी जाती हैं। कभी कभी फाइक भाई बड़ी शिद्दत से याद आते हैं। 5 साल होने में कितना वक्त बाकी है अभी। हंसता हुआ माहौल एकदम अफसुर्दा हो जाता। अभी तो बहुत ढेर सारे दिन बाकी हैं, लेकिन कट ही जाएंगे। निमरा उसे तसल्ली देती। और फिर फाइक भाई ने आने से पहले फोन किया तो अम्मी ने पूछ डाला कि अगर वो कहीं उनके लिए लड़की तलाश करके रखे, तो वो शायद बहुत ही फर्माबरदार किस्म के बच्चों में से थे कि सब कुछ उन पर छोड़ दिया।
जिस दिन उन्हें आना था सुबह से ही सैफ मामू की पूरी फैमिली उनके यहाँ आ गई थी। वो भी काफी रिश्तेदार शाम से उनके घर जमा होने शुरू हो गए थे। आखिर भाई हाई क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर बनकर लौट रहे थे। यहाँ उनके लिए बहुत मौके थे। जरा दिल संभाल कर मिलना फाइक भाई से, कहीं देखकर बेहोश हो गई तो हमें ना कहना। सायरा ने एयरपोर्ट के लिए तैयारी करते हुए निम्रा से कहा तो वो जानबूझकर हैरत से पूछने लगी, क्यों, इतने बदसूरत हैं वो? बदसूरत? वो चीख ही पड़ी, मेरे इतने हसीन भाई को बदसूरत कहा तुमने? इतने हैंडसम और डैशिंग है कि मेरा दावा है कि तुमने कभी अपनी पूरी लाइफ में ऐसा खूबसूरत शख्स ना देखा होगा। अच्छा, शाहिद से भी ज्यादा? वो उसे चढ़ाने के मूड में थी। जी हाँ, तुम्हारे होने वाले मियाँ से भी ज्यादा खुश नसीब हो कि इतना खूबसूरत और स्मार्ट जेट मिल रहा है तुम्हें। लो, इसमें खुश नसीबी की क्या बात है? उसे हंसी आ गई। लेकिन जब एयरपोर्ट पर उसने फाइक को देखा तो एक लम्हे को वो साकित रह गई। सायरा ने किस कदर गलत कहा था उसे। वो तारीफ के चंद अल्फाज उसके काबिल ना थे कि उनकी पूरी शख्सियत की तर्जुमानी करते। सबसे मिलकर वो उसकी जानिब आए। अम्मी ने तारुफ करवाया, तुम्हारी होने वाली भावज है, तुम्हारे सैफ मामू की बेटी निम्रा। हाँ, तस्वीरें देख रखी हैं। उनकी आंखों में सताई थी। तस्वीरें तो उसने भी देख रखी थी उनकी, लेकिन तस्वीर और हकीकत में खासा फर्क होता है। फिर शायद उनकी तस्वीरें इतनी अच्छी नहीं आती थी जिससे जिस कदर वो खुद थे। इस शब उसे जाने क्यों लगा कि उससे जल्दबाजी हो गई है। शाहिद भी अच्छा और स्मार्ट लड़का था, एमबीए कर रहा था, लेकिन एक हाई एजुकेटेड अमेरिकन पलट हैंडसम शख्स के आगे कुछ भी नहीं था। उनके बैठने, बात करने, हंसने का अंदाज किस कदर मुनफरिद और दिलकश था। वो इन लोगों में से था जिन्हें कुदरत फ़याली से हर शय अता कर देती है। शक्लो सूरत, मिजाज, आवाज़, तालीम और किस्मत, हर बात में उन्हें A+ मिला हुआ था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसने खुद को कमजोर दिल के साथ डांटा। लेकिन क्यों नहीं, मुझ जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की का जोड़ उन्हीं के साथ जचता है। अगर मैं खुद से ना कहती तो शायद शाहिद इतनी जल्दी मुल्तफित ना होता। हो भी जाता तो तालीम मुकम्मल होने से पहले उसे मंगनी का ख्याल तक ना आता। और ये मंगनी, सोने की खूबसूरत सी अंगूठी उसकी उंगली में चुभने लगी। और ये मंगनी ना होती तो फूफो जान को यकीनन फाइक के लिए मेरा ख्याल आता, वो मुझे मांग बैठती। आखिर है कोई खानदान में मुझ जैसी हसीन लड़की? उसे बार बार खुद पर तैश आ रहा था। फिर जब भी उससे फाइक का सामना होता अपनी बेबसी का एहसास और बढ़ जाता। अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो इस घर में बहू बनकर आ रही थी, मगर किसी और की बीवी बनकर। लेकिन अब अपने दिल का क्या करती जो फाइक का दीवाना हो चला था। उनकी हर हर बात, हर हर अंदाज उसका दिल लूट लेता। वो वाकई दीवानी हो चुकी थी, अक्लो खिर्द की हर हद पार कर चुकी थी। तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है फाइक अहमद, तुम किसी और के नहीं हो सकते। ना ही तुम्हें देखने के बाद अब अपना वजूद किसी और को सौंप सकती हूँ। मुझे अब हर हाल में तुम्हें पाना है, और तुम्हें पाने के लिए मुझे कुछ भी करना होगा, हर तरीका और हर हरबा। रात रात भर जाकर वो सोचती रहती क्या करे ऐसा कि शाहिद से उसकी मंगनी खत्म होकर फाइक के साथ हो जाए। कुछ ऐसा आसान भी ना था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। उसे सब कुछ खुदा पर छोड़ने की बजाय खुद कुछ कोशिश करनी होगी जल्द, क्योंकि अम्मी आजकल फाइक भाई के लिए लड़कियां देख रही थी। उसे वो हमेशा अपने साथ लेकर जाती और वो बहाने बहाने से उन लड़कियों में कोई ना कोई ऐब निकाल कर उन्हें रद्द करती रहती। उसका अंदाज ऐसा होता कि अम्मी के लिए सिवाय इनकार के कोई गुंजाइश ना रह जाती। फिर अपने बेटे के लिए वो इतने चंदे महताब दुल्हन ला रही थी, तो दूसरे हीरे जैसे बेटे के लिए उससे बढ़कर ना सही तो उससे कम भी ना होती। बिल आखिर काफी दिनों की सोच विचार के बाद एक ख्याल उसे सूझ गया, और अब इस वक्त का इंतजार था, और यह मौका भी उसे जल्द मिल गया। उस दिन सायरा की सालगिरह थी। रात गए उसकी सब दोस्तें और कजन्स चली गई, लेकिन अम्मी ने इसरार करके सैफ मामू की फैमिली को रोक लिया। दूसरे रोज क्योंकि छुट्टी थी, इसीलिए उन्हें भी कोई एतराज ना हुआ। सब टीवी लाउंज में जमा थे कि शाहिद ने इशारे से उसे बाहर बुलाया, तो वो खामोशी से उठकर बाहर चली आई। क्या है, तुम्हें मालूम है सब जाग रहे हैं अभी। कोई हमें यूं अकेले में बातें करते देखेगा तो क्या सोचेगा? वो बेजारी से कह रही थी। क्या सोचेगा? यही कि मुस्तकबिल के मियाँ बीवी फ्यूचर प्लानिंग में मसरूफ हैं। वो मुस्कुराया। उसका हलक तक कड़वा हो गया। अब तो हम उसे तो अब इस मौजू पर बात करना भी सख्त नापसंद था। मैं अंदर जा रही हूँ। वो उसकी बात नजरअंदाज करके अंदर जाने लगी। तो यार, तुम तो बहुत डरपोक हो गई हो। इस सादा दिल को बिल्कुल भी ख्याल ना आया कि पहले जो घंटों तन्हाई में उससे मिलते बातें करते ना थकती थी, अब एकदम उसे जमाने का खौफ कैसे हो चला है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। हम लोगों का डिनर का प्रोग्राम है रात भर। तुम्हें तो मालूम है अम्मी जान रात गए तक मेरा बाहर रहना पसंद नहीं करते, तो पूरी रात दोस्त के घर रहने की तो वो बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। फिर फिर ये कि कोई पूछे तो कह देना कि मैं सोने चला गया हूँ।
बस तुम्हें एक फेवर करना है कि सुबह मुंह अंधेरे जब मैं लौटूं तो तुम दरवाजा खोल देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं अम्मी और अभी जान के नमाज के लिए उठने से पहले वापिस आ जाऊंगा। देख लो कहीं कोई मुश्किल न खड़ी हो जाए। कुछ नहीं होगा, दरवाजा बाहर से लॉक करके चाबी तुम अपने पास रख लेना। सब समझेंगे मैं सो रहा हूँ। मेरी नींद का तो सबको पता है, जब मुझे नींद आती है तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, कौन आया है कौन गया। प्लीज निम्रा, कुछ दिन रह गए हैं आजादी के। फिर तो वो शरारत से मुस्कुराया। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो तुम अंधेरे में ही लौट आना, रोशनी हो गई तो सब जाग जाएंगे और सबको पता चल जाएगा। एक खौफनाक मंसूबा उसके जहन में दर आया। सोच तो वो पहले से चुकी थी, लेकिन अब हालात के मुताबिक उसने उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल कर ली थी। ओके बॉस। शाहिक ने सर हिलाया और अपने कमरे में अपनी जरूरी चीजें लेने चला गया। कुछ देर बाद वो अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके चाबी उसे थमाकर खामोशी से बाहर निकल गया। कुछ देर ये यकीन कर लेने के बाद कि किसी को शाहिक की रवानगी का इल्म नहीं हुआ, वो किचन में आ गई, जहां मासी जहरा की बेटी जाहिदा किचन की सफाई में मसरूफ थी। काम खत्म ना होने सकने की वजह से अम्मी ने रात को उसे यहीं रोक लिया था। मासी जहरा उसे घराने में एक जमाने से आया करती थी, इसीलिए उसे यहाँ के मकीनों पर एतबार था। उसकी बेटी जाहिदा जो आजकल मैट्रिक के इम्तिहान देकर फारिग हुई थी, इसीलिए वो उसे भी अपनी सहूलत के लिए ले आई थी। अम्मी ने उसे रोका तो वो हमारे लिहाज के इनकार भी ना कर सकी। खुद जहरा के दूसरे बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए वो रुक नहीं सकती थी। खत्म हो गया तुम्हारा काम? उसने सरसरी अंदाज में पूछा। जी बीबी, तकरीबन खत्म है। वो नल के नीचे अपने हाथ धो रही थी। चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सोने की जगह बता दूं। लेट जाओ अब, तुम थक गई होगी, सुबह से लगी हो। उसने हमदर्द लहजे में कहा तो वो तशक्कुर से उसे देखने लगी। नहीं जी, मुझे तो आदत है, घर में क्या कम काम होते हैं। अच्छा फिर आ जाओ। वो उसे लिए हुए शाही के कमरे की जानिब आ गई। लॉक खोला, पलंग से तकिया और कंबल उठाया और सोफे के एक जानिब रखकर उसे लेट जाने का इशारा करते हुए बोली, यहाँ सो जाओ तुम। अभी जहरा बीबी और मैं लाउंज में सबके साथ बातें कर रहे हैं, फिर हम यहाँ बिस्तर पर आकर सो जाएंगे। आ जाइएगा बीबी, अकेले डर लगता है मुझे, वो लेटते हुए बोली। हाँ हाँ, बस अभी आते हैं। मैं तुम्हें अभी से सोने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ सब चाय कॉफी के शौकीन हैं। जागती नजर आती रहोगी तो फरमाइशें करते रहेंगे। किसी ने कहा तो मैं बना दूंगी। तुम भी आखिर इंसान हो। उसने अलमारी से निकालकर दूसरा कंबल बिस्तर पर रखा। शुक्रिया बीबी, आप वाकई बहुत हमदर्द हैं। वो उसके खुलूस से बेहद मुतासिर नजर आ रही थी। निम्रा ने तमाम लाइट्स बुझाई, पर्दे गिराए और दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। उसके इतने देर बाहर रहने को सब यही समझ रहे थे कि वो शाहिक से बातों में मसरूफ है। शर्म करो, तुम्हारे अम्मा अब्बा भी मौजूद हैं आज, बातें कर करके नहीं थकते तुम दोनों। उसके बैठते ही सायरा ने सरगोशी में छेड़ा। अम्मा अब्बा इतने नैरो माइंड नहीं है मेरे। वो भी खुशदिली से मुस्कुराई। एक बड़ा मरहला आसानी से तय हो गया था। सारी रात वो जागती रही। सायरा तो कुछ देर बाद ही हल्के हल्के खराटे लेने लगी थी। सबके सो जाने का इत्मीनान कर लेने के बाद वो ऐसी जगह आकर बैठ गई जहां शाही के हल्के से खटके पर वो उठकर दरवाजा खोल सके। सर्दियां थी, गर्म बिस्तर में घुसकर सोने का उसका दिल भी चाह रहा था, लेकिन उसका जागना जरूरी था। शाही की बाहर से आमद अगर किसी की नजर में आ जाती तो उसका सारा मंसूबा फ्लॉप हो सकता था। अम्मी को बातों में जाहिदा का ख्याल आया भी था, तो उसने उन्हें यह कहकर मुतमईन कर दिया था कि वो उनके कमरे में सो चुकी है और वो फिर से सबसे बातों में मसरूफ हो गई थी। सायरा फितरतन लापरवाह थी। सोते वक्त उसे बिल्कुल ख्याल भी नहीं आया था कि जाहिदा तो उनके कमरे में सो रही थी। इस वक्त कहाँ थी? रात बहुत हो गई थी, इसीलिए लेटते ही वो सो गई थी। सारी बातें उसके हक में जा रही थीं और अब उसे शिद्दत से शाहिद का इंतजार था। अजानों में कुछ देर थी कि हल्के से खटके ने उसे बताया कि वो लौट आया है। उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। उसे देखकर कुछ शर्मिंदगी से वो मुस्कुराया। आई एम सॉरी, लगता है मेरी वजह से ढंग से तुम सो भी नहीं सकी। कोई बात नहीं, अब तुम चुपचाप जाकर खामोशी से सो जाओ। कमरे की लाइट वगैरह भी मत जलाना, ना कोई खटर पटर करने की जरूरत है। अंकल आंटी के उठने का वक्त है। तुम्हारे शोर करने और लाइट जलाने से उनको पता चल गया तो दोनों की शामत आ जाएगी। उसने आहिस्तगी से कहा। ठीक है जनाब, जो हुक्म आपका। वो अंदर जाने के लिए मुड़ा, फिर रुककर उसकी जानिब देखा, नजरों में मोहब्बत समोकर बोला, तुम यकीनन एक कामयाब बीवी साबित होगी। आज का एहसान सूद समेत वापस लौटा दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, इस वक्त तो तुम जाओ अपने कमरे में। उसे शाही की इस वक्त मोहब्बत जताने पर उलझन सी हो रही थी। फिर एक एक लम्हा कीमती था। कोई उठ गया तो उसने कोई 10वीं बार सोचा। जा रहा हूँ भाई। वो खामोशी से अपने कमरे की जानिब चला गया। निमरा की हदायत के मुताबिक उसने लाइट भी नहीं जलाई और इन्हीं कपड़ों समेत अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके अपने बिस्तर पर ढेर हो गया। नींद का तो वैसे भी कच्चा था, क्या मालूम था कि यही नींद उसे सबके सामने रुस्वा कर देगी।
जाहिदा की जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसे सवेरे उठने की आदत थी। यहाँ तो सोते सोते देर हो गई थी, इसीलिए इतना वक्त भी हो गया था। सुबह के 6:30 बज रहे थे, इसीलिए अभी तक अंधेरा था। बचपन से नमाज की इतनी पुख्ता आदत थी कि छूटती नहीं थी। नमाज के इरादे से वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल रही थी कि सामने निम्रा को देखकर रुक गई, जो कड़े तेवरों के साथ उसे देख रही थी। क्या कर रही थी तुम अंदर? मैं जी सो रही थी। वो उसके अंदाज पर हैरान रह गई। सो रही थी? शाहिद के कमरे में? उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए पूछा। शाहिद साहब के कमरे में? उसने हैरत और खौफ से खुले दरवाजे से अंदर झांका। कंबल में घुसा हुआ शायद ये शाहिद का ही वजूद था। हाँ हाँ, अभी मैंने खुद तुम्हें उसके कमरे से निकलते देखा है। शाहिद! वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ ही देर में सब जमा हो गए। 1 घंटा पहले सोए शाहिद की आंख मुश्किल खुली। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या बात है? क्या हुआ निम्रा? अम्मी ने आगे बढ़कर पूछा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ निम्रा? कुछ बताओ तो, कुछ कहो तो, क्या बात है? क्यों रो रही हो इस तरह? अमीना मुमानी ने बेटी को संभालते हुए समझने की कोशिश की। पूछिए इससे, ये शाही के कमरे में क्या कर रही थी? मैंने खुद इसे शाही के कमरे से निकलते देखा है। सब शौक रह गए। खुद जाहिदा सकते में रह गई थी। उसे क्या मालूम था कि वो सारी रात एक अजनबी लड़के कमरे में सोती रही है। क्यों लड़की, तुम उस कमरे में सोई थी? अम्मी जान ने आगे आकर सख्त लहजे में उससे पूछा तो वो घबरा कर उसने सर हिला दिया। सबकी मुलामत अमेज नजरें उसकी जानिब उठी। लेकिन ये मेरे कमरे में कैसे? खुद शाही हैरत और परेशानी से उसे देखने लगा, जिसके चेहरे पर जिल्लत के शदीद एहसास से पसीने के कतरे नमूदार होना शुरू हो गए थे। ये तुम खुद से पूछो, ये करतूत है तुम्हारे? अपने ही घर में रात भर एक लड़की के साथ? निम्रा फट पड़ी थी। रात भर? वो इस इल्जाम पर शशदर रह गया था। वो तो जानती थी कि वो रात भर अपने दोस्तों में गया हुआ था। हाँ, रात भर या जब भी, लेकिन ये अभी तुम्हारे कमरे से निकली है, यूं अंधेरे में। इसका तुम्हारे कमरे में क्या काम था? तुम धोखेबाज हो, गंदी जहनियत के इंसान। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं नहीं जानता अम्मी जान कि ये मेरे कमरे में कैसे आई। मैं तो कमरा बंद करके सो गया था। वो अब भी डर के मारे उनसे ना कह सका कि वो रात भर घर में नहीं था। हैरत है, इतनी बड़ी लड़की तुम्हारे कमरे में मौजूद थी और तुम्हें नजर भी नहीं आई। अमीना मुमानी का अंदाज तंजिया था। वो चुप होकर रह गया। उसने एक चोर नजर माँ के चेहरे पर डाली। वो शदीद सदमे की कैफियत में थी। शायद उन्हें अपनी औलाद से इसकी तवक्का नहीं थी। अम्मी प्लीज, आप तो मेरा यकीन करें, मैं नहीं जानता। मैं तो अपने कमरे में जाकर सो गया था। उसने उनका हाथ थामना चाहा, लेकिन उन्होंने जोर से उसे झटक दिया। मत छुओ मुझे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरा बेटा? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पाक साफ घर में ऐसा खेल? वो फूट फूट कर रोने लगी तो वो मजीद सब्र न कर सका। लेकिन अम्मी, मैं घर में था कहाँ? अपने दोस्त के घर में था। आप इससे दूसरे दोस्तों से फोन करके पूछ सकती हैं। लीजिए, एक गुण और खुला है साहबजादे में, रातों को घर में बताए बगैर घर से गायब रहता है। अमीना मुमानी तो और सुलग गई। अम्मी जान के चेहरे के तासुरात मजीद गजबनाक होते गए। तुम रात भर घर से गायब थे, किसी से परमिशन लिए बगैर? तुम्हारी ये जुर्रत! कहाँ थे तुम रात भर? तारिक के घर। सारे दोस्त कार्ड्स खेलने के लिए जमा हुए थे। उसकी नजरें बाप के गजब के आगे झुक गईं। और तुम मुझसे या अपनी माँ से पूछे बगैर रात भर घर से गायब रहे, हमारी आंखों में धूल झोंक कर। हम समझते रहे कि तुम अपने कमरे में सो रहे हो। अम्मी जान ने 2-3 जोरदार थप्पड़ उसे रसीद कर दिए। अरे छोड़िए भाई साहब, घर से बाहर होने का तो बहाना है। अभी कुछ देर बाद दोस्तों से गवाही भी दिलवा देगा। पहले से प्लानिंग होगी। घर में जवान लड़की देखकर नीयत खराब हो गई होगी। अमीना मुमानी तो जाने किन जन्मों के बदले ले रही थी। खामोश हो जाइए आप, जब से मुझ पर इल्जाम रखे जा रही हैं। मेरे जाने का इल्म आपकी बेटी को भी था, पूछिए इसे। सुबह इसी ने दरवाजा खोला था। मालूम है इसे कि मैं रात भर अपने कमरे में था या बाहर। अब उसकी बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी। निम्रा ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। मुझे कुछ नहीं मालूम, वो रोए गई। रात भर ना सही तो कुछ देर पहले बुलवा लिया होगा तुमने इसे अपने कमरे में। बददयानती और बेवफाई का तो एक लम्हा भी भारी होता है। लड़कियों को तुम ऐसी नजर से देखते हो, मुझ पर आज खुला है। तुम एतबार के काबिल नहीं रहे। तुमने मेरे मान और भरोसे को तोड़ दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था शाहिक। तुमने हम सबका सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। मुझे तो कभी त्यारे गैर में भी ऐसे शर्मनाक ख्याल नहीं आया। और तुमने अपने घर की पाकीज़गी का भी ख्याल नहीं किया। फाइक भाई, जो कब से खामोश खड़े कुड़ रहे थे, बेइंतहा दुख से बोले तो उसका जी चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। कोई क्यों नहीं समझता, क्यों यकीन नहीं करता मेरा?
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये लड़की, इसे तो मैंने कभी गौर से देखा भी नहीं। मुश्किल से चंद बार तो ये हमारे घर आई होगी, और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या आप लोगों ने बचपन से मुझे नहीं देखा? वो चीख चीख कर अपना यकीन दिलाने लगा। मैं अभी घर जाऊंगी मम्मा पापा। वो सैफ मामू के गले से लगकर फिर उसी जोरों शोर से रोने लगी तो वो शौक किसी कैफियत से निकले। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका वो भांजा जो बचपन से उन्हें बेहद पसंद था ऐसा निकलेगा। चलते हैं बेटा, वो थके थके अंदाज में यूं बोले जैसे अपना सब कुछ लुटा चुके हों। और इस लड़की का भी कुछ करें, बुलाएं इसकी माँ को, बताएं इसके करतूत। अमीना मुमानी ने साकित खड़ी जाहिदा की जानिब एक और तीर छोड़ा तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। नहीं बीबी, वो अम्मी के कदमों में झुक गई। मेरी माँ से कुछ ना कहना, वो मेरी चमड़ी उधेड़ देगी, मेरी पढ़ाई छुड़ा देगी। मैंने कुछ नहीं किया बीबी। भाड़ में जाए तुम्हारी पढ़ाई। उन्होंने अपने पैर झटके। मेरे घर में एक क्यामत आ गई तुम्हारे दम से, सब कुछ खत्म हो गया। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ले जाओ सायरा इसे यहाँ से, और उसकी माँ आए तो हवाले कर देना उसके। आइंदा शक्ल मत दिखाना अपनी। सायरा रोती हुई जाहिदा को वहां से ले गई। चलें अब आप भी घर। शुक्र है पहले से पता चल गया, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। कुछ अरसा रोएगी, सारी उम्र के रोने से तो बेहतर है। अमीना मुमानी ने सैफ मामू को कंधे से हिलाया। भाभी भाईजान, मेरे घर की इज्जत अब आपके हाथों में है। इस वाकये का जिक्र बाहर किसी से, खानदान में किसी से ना कीजिएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। अम्मी ने रोते हुए अपना हाथ भाई बाबज के आगे बांधे तो वो तड़प कर रह गया। अम्मी मत करें ऐसा, कुछ नहीं किया मैंने कि आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। यकीन करें मेरा। उसने इनके बंधे हुए हाथ थामे तो वो रोते रोते भाई के गले लग गई। अब्बी जान को उसकी डिटाई पर जैसे पतंगे से लग गए। आंखों देखा जुटला रहा था वो। खुद उसकी चाहने वाली मंगेतर ने अपनी आंखों से देखा था। सब जानते थे कि यह मंगनी दोनों की पसंद से हुई थी। उन्होंने अपनी छड़ी से उठकर पीटना शुरू कर दिया, और जाने क्यों शदीद गुस्से और नफरत के बावजूद वो उनका हाथ ना पकड़ सका। छड़ी की हर चोट उसके अंदर उभरती नफरत को बढ़ा रही थी। ये कैसे लोग थे सब? उसके माँ बाप, बहन भाई, मंगेतर और मामू सवाए मुमानी के, सबसे उसका खून का रिश्ता था। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। निम्रा तो सब जानती थी। वो कुछ देर पहले तो आया था, उसने ही इसे लाइट जलाने से मना किया था, वरना शायद वो देख लेता। फिर उसकी नींद भी तो ऐसी थी, जाने इतनी देर कैसे जाग लिया था वो। शायद दोस्तों के ताने सुन सुनकर, जो हमेशा जमा जमा होते, कभी उसे बुजदिली के ताने देते, कभी उसकी नींद को बुरा भला कहते। बिल आखिर उस रोज उसे राजी कर ही बैठे थे। काश के वो उस रोज भी ना जाता, लेकिन आज ना सही तो फिर किसी रोज। और जब उससे पीछा छुड़ाना ही ठहरा था तो ये वाकया किसी न किसी दिन जरूर रोनुमा होता, किसी और शक्ल में, किसी और अंदाज में। उसे निम्रा के चेहरे पर छुपी हुई बेवफाई नजर आ गई थी। उसने कड़ी से कड़ी मिला ली थी। लेकिन क्यों क्यों पीछा छुड़ाना चाहती थी वो? ये मंगनी तो उसकी पसंद से हुई थी। उसे कुछ जवाब ना मिल सका। बस करें अभी जान, क्या उसकी जान लेंगे? फाइक भाई ने कहा तो, लेकिन आगे बढ़कर उनकी छड़ी छीनने की उनकी हिम्मत ना हो सकी। हाँ भाई साहब, बस करें, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं जवानी में, यूं समझाने का तरीका मुनासिब नहीं है। सैफ मामू ने छड़ी उनके हाथ से छीन ली। नहीं माफ कर सकता मैं इसे, इसकी ऐसी गलती को। बुढ़ापे में सर झुका दिया है इसने मेरा मेरा सारा मान तोड़ दिया है। मुझे अपनी तरबियत पर बहुत नाज था, सब मट्टी में मिला दिया इसने। शिद्दत गम से उनकी आवाज रुंध गई। शाही का दिल चाहे जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। प्लीज अब्बी जान, मेरा यकीन करें, मैंने आपके भरोसे को कोई ठेस नहीं पहुंचाई। आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं थी अब्बी जान। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे आपका सर शर्मिंदगी से झुक जाए। बंद करो ये बकवास, डटाई की भी एक हद होती है। निम्रा ने अगर खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो और बात थी, वो झूठ क्यों कहेगी? क्या दुश्मनी है इसे तुमसे? वो चिल्लाए। यही तो नहीं मालूम मुझे किस जन्म का बदला लिया है इसने मुझसे। वो शदीद नफरत से उसे देखकर बोला तो वो रोना छोड़कर चीख पड़ी। हाँ, लगा दो मुझ पर इल्जाम, रख दो तोहमत मुझ पर, अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए। लेकिन मैं आंखों से देखने के बाद सब कुछ नहीं झुटला सकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये सब नहीं, ये सब नहीं। ठीक है तो फिर, वो पथरीले लहजे में बोला। आप सबको मेरा यकीन नहीं, मेरा भरोसा नहीं। आप सब मुझे गुनाहगार समझते हैं तो ठीक है, मैं भी अब अपनी सफाई में मजीद कुछ नहीं कहूंगा। कोई भी अब मुझसे बात ना करे, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। चले जाओ सब, चले जाओ। मैं बुरा हूं तो यूं ही सही। जा रहे हैं, यहाँ रुकना भी कौन चाहता है अब? अमीना मुमानी इंतहाई नफरत से बोली। ये रही तुम्हारी अंगूठी, रखो इसे अपने पास, घिन आ रही है मुझे इससे। निम्रा ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और उस पर दे मारी। और घिन आ रही है मुझे तुमसे और तुम्हारी साजिशी सोच से, वो चिल्लाया और वापस अपने कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। सैफ मामू और अमीना मुमानी निम्रा को लेकर वापस अपने घर चले गए। अम्मी ने बिस्तर संभाल लिया।
अभी जान भी बिल्कुल खामोश हो गए। घर का माहौल अजीब सा हो गया। जिस घर में हर वक्त हंसी गूंजा करती थी, वहां के लोग एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहने लगे। सबको ही शाही की इस हरकत का बहुत दुख था। सुबह जब जरीना मासी काम करने आई तो उसे उसकी बेटी की हरकत के बारे में बताया गया। वो तो सख्ते और सदमे की हालत में खामोश बैठी रह गई। फिर जब होश आया तो बेटी को दो हत्थर मारते हुए वो चीख चीख कर रोने लगी। जन्म जली, ये क्या किया तूने? इससे तो अच्छा था तू पैदा होते ही मर जाती, ये दिन तो ना देखना पड़ता। अम्मा, अम्मा मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। निम्रा बीबी ने मुझसे कहा यहाँ सो जाओ, मैं सो गई। मैं कौन सा रोज यहाँ आती हूँ जो मुझे पता होता कि ये किसका कमरा है। उस वक्त वो कमरा खाली था। उसने रोते हुए सफाई पेश की। सुबह तो वो एकदम हर एक की यलगार से घबरा गई थी, लेकिन इस वक्त अजनबी लोगों के मेले में उसे अपनी माँ का चेहरा नजर आया तो वो खुद पर लगे इल्जाम को मिटाने की कोशिश करने लगी। हाँ, बड़ी मासूम हो तुम, क्यों इल्जाम लगाती हो निम्रा पर? सायरा को गुस्सा आ गया। मैं इल्जाम नहीं लगा रही बीबी, सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें। मैंने तो कभी शाहिद साहब से बात भी नहीं की। वो चीख चीख कर सबको समझाने और यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी। सच बड़ा तलख होता है ज़हरा। हमारा तुम्हारा एक अरसे बड़ा अच्छा साथ रहा है, लेकिन मुझे अफसोस है अब ये कायम नहीं रह सकेगा। ये लो तुम्हारे इतने दिनों के पैसे, और हमें माफ कर देना कि हम अपने घर में तुम्हारी बेटी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सके। अम्मी कहते कहते शर्मिंदा सी रोने लगी। नहीं बीबी जी, ऐसा मत कहें, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरा यकीन करो अम्मा, मैं नहीं जानती ये सब गलत क्यों सोच रहे हैं। अम्मा, ये बड़े लोग किसी की भी इज्जत को मिनटों में उछाल देना इनकी कोई मुश्किल काम नहीं। एहतजाज करते करते अपना यकीन दिलाने में नाकामी पर जाहिदा बेबसी से उसे बुरा भला कहने लगी। चुप कर तू, चुप कर जा। जहरा मासी फिर से बेटी को पीटने लगी। बस करो मासी, और तमाशा ना करो। हमने भी किसी से नहीं कहा। तुम भी खामोश रहना, वरना ऐसी लड़की को ब्याहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें। अब जाओ बस। अम्मी के कहने पर जहरा मासी चुपचाप उठी और जैसे अपनी लाश को अपने कंधों पर उठाए अपनी बेटी समेत वहां से निकल गई। शाहिद सारा दिन कमरे से बाहर ना आया तो ममता तड़प उठी। जैसा भी था उसका बेटा था। सायरा, देखो जाकर उसे, सुबह से भूखा पड़ा है, रात हो गई है, उठाओ उसे। मैं नहीं जाती अम्मी, जाने कैसा मूड हो उनका, पहले ही इतने गुस्से वाले हैं। सायरा ने इनकार कर दिया। मैं जाता हूँ अम्मी, फाइक भाई उठते हुए बोले। रहने दो अकेला उसे, मर जाने दो भूखा, नाक कटवा दी उसने हमारी। ऐसे करतूत कभी 7 पुश्तों में भी किसी ने ऐसा काम ना किया होगा। अभी जान अभी तक गुस्से में थे। बस करें अब, बच्चा है, गलती हो जाती है बच्चों से। बड़ों को काम होता है उन्हें माफ करना। हाँ, ऐसी गलतियों को? वो तंजिया बोले। मैं उसे इसकी उस हरकत पर कभी माफ नहीं कर सकता। बड़ा मान था मुझे अपनी तरबियत पर, सब मट्टी में मिला दिया उसने। प्लीज अभी जान, माफ कर दे उसे, ये उसकी पहली गलती है। हमेशा फर्मा बरदार रहा है वो, जाने कैसे ये सब कर बैठा। लेकिन अगर हमने उसे माफ ना किया तो वो गलत राहों पर चल निकलेगा। फाइक भाई ने उन्हें समझाया, फिर उनकी खामोशी को रजामंदी जानकर वहां से चले गए। जाने भाभी जान क्या क्या कहानियां बनाएंगी खानदान में। अम्मी को रह रह कर होल उठ रहे थे। जो भी हो, अब वो हक पर हैं। उनकी बेटी का मुस्तकबिल तो तबाह हो गया ना। शाहिद से शादी होती तब भी, अब नहीं होगी तो मंगनी टूटने पर लोग लाख बातें बनाएंगे। सायरा ने कहा। जाऊंगी मैं कल भाईजान के यहाँ, कोशिश करूंगी कि वो इस रिश्ते को ना तोड़े। अम्मी बोली तो अभी जान खामोश रहे। दूसरे ही रोज जब अम्मी सायरा के हमरा सैफ मामू के यहाँ पहुंची तो निम्रा की हालत देखकर उनका दिल कुड़ गया। उसने रो रो कर क्या हालत कर ली थी। देखा तुमने समन, मेरी बेटी का हाल, सिर्फ तुम्हारे बेटे की वजह से। अमीना मुमानी दुपट्टे से मुंह ढांक कर रोने लगी। मुझे अफसोस है भाभी, तुम्हारे अफसोस करने से क्या होता है। अमीना मुमानी ने तेजी से उनकी बात काटी। मेरी बेटी की तो जिंदगी खराब हो गई है ना, अब लोग हजार बहाने बनाएंगे। लोग तो लड़कियों में ही गलती तलाश करते हैं। अब कौन करेगा इससे शादी। भाभी प्लीज, आप शाहिद की ये गलती माफ कर दें। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। अम्मी ने उनके हाथ थामे जिसे झटक कर वो तेज लहजे में बोली। ये तो तुम कभी ना सोचना समन कि मैं तुम्हारे बेटे को माफ कर दूंगी। ये तो हमारा ज़र्फ है कि हम अब तक खामोश हैं, किसी से जिक्र तक नहीं किया। ये आपकी बड़ाई है भाभी, वरना। लेकिन अब मेरी बेटी का क्या होगा, ये सोचा तुमने? मैं क्या कर सकती हूँ भाभी, वो बेबसी से बोली। आप शाहिद को माफ करने के लिए तैयार नहीं है तो क्या हुआ, फाइक भी तो है। अमीना मुमानी ने जल्दी से कहा। फाइक? अम्मी होंकों की तरह उनकी शक्ल देखने लगी। हाँ, तुम लोगों को तो मालूम है कि इस मंगनी के टूटने पर मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं, सब किया धरा शाहिद का था। दूसरों को हम क्या सफाइयां देंगे, घर की बात घर में रह जाएगी। लेकिन भाभी, लोग क्या कहेंगे कि एक बेटे से मंगनी तोड़कर दूसरे से शादी। फिर फाइक और निम्रा इसके लिए तैयार हो जाएंगे। मेरी बेटी का तो तुम ना कहो, वो मेरी बेटी है।
उसकी तरबियत मैंने की है। उनका अंदाज इस कदर फखरिया और तंजिया था कि अम्मी की पलकें शर्मिंदगी से झुक गईं। रह गया फाइक, तो उसे तैयार करना तुम्हारा काम है। मैंने तुम्हारे भाई से भी बात की थी, वो भी उसके हक में है। जाहिर है मेरी बेटी पर बहुतान रखेंगे लोग 10 तरह के मंगनी टूटने पर, और हम तो वजह जानते ही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा भाभी, ये सब किस तरह मुमकिन होगा। निम्रा और शाहिद तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, करते थे। कम से कम निम्रा तो अब उससे शदीद नफरत करती है। तुम्हें अगर अपने भाई से ताल्लुक बरकरार रखना है तो ऐसा करना होगा, वरना ठीक है। उनका अंदाज धमकी देने वाला था। अम्मी परेशानी से सर झुकाकर रह गईं। भाई से कता ताल्लुक करने की हिम्मत उनमें ना थी कि मेके में अब उनका यही सगा रिश्ता बाकी रह गया था। फाइक को इस रिश्ते के लिए उन्होंने किस तरह राजी किया, अभी जान तो बआसानी मान गए थे। रिश्तेदारों में कैसे कैसे बहाने तराशने पड़े, मिलने जुलने वालों को क्या क्या सफाइयां पेश करनी पड़ी, ये भी एक अलग कहानी थी। लेकिन बिल आखिर शाहिद की जात को पसे पुछ डालकर निम्रा को फाइक से मुंसलिक कर दिया गया। हाँ, अलबत्ता मंगनी की बजाय कुछ ही दिनों बाद शादी ही करना तय पाया गया। उस रोज निम्रा बेपनाह खुश थी। अपनी खुशी उससे छुपाए न छुप रही थी। उसकी आंखों, होंठों, अंग अंग से खुशी झलक रही थी। उसे शाहिद से मंगनी खत्म होकर फाइक से रिश्ता तय होने का कोई मलाल न था। ये बात और किसी ने महसूस की हो या ना की हो, लेकिन सायरा ने बआसानी महसूस कर ली। घर वापसी पर वो बेहद खामोशी से हर बात के बारे में सोच रही थी। उसे कुछ कहीं जरूर गलत नजर आ रहा था, और जब अम्मी उससे तन्हाई में मुयस्सर आई तो वो अपने इस शक का इजहार उनसे कर बैठी। अम्मी, कहीं हम लोगों से कोई ज्यादती तो नहीं हो गई शाहिद भाई के साथ? मतलब? वो चौंकी। उस रोज जो वाकया हुआ, उसकी ऐनी शाहिद सिर्फ निम्रा थी। सिर्फ निम्रा को मालूम था कि शाहिद भाई रात भर दोस्तों में बाहर रहेंगे। जाहिदा को भी उसी ने सोने के लिए कहा। सुबह शाहिद भाई के कमरे से निकलते हुए उसे रंगे हाथों निम्रा ने ही पकड़ा। वो इतनी सुबह वहां क्या कर रही थी, किसी ने नहीं पूछा, जबकि वो इतनी रात को सोई थी। इतनी सुबह उसकी आंख कैसे खुल गई, एक ही घंटे बाद? फिर शाहिद भाई से मंगनी टूटने का उसे इतना दुख और मलाल नहीं हुआ जितना फाइक भाई से बात तय हो जाने पर वो खुश है। वो कड़ियों से कड़ियां मिलाती गई। अम्मी हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। दूसरे, अम्मी, हमसे गलती हुई। हमें दोनों से हलफ लेना चाहिए था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, जब खुदा ने एक पाक किताब को हमारे इंसाफ का रास्ता भी बनाया है। हाँ बेटा, इसका ख्याल मुझे भी आया था, लेकिन बाद में, इस वक्त देर हो चुकी थी। अमीना भाभी तो एक तूफान खड़ा कर देती कि मेरी बेटी को झूठा समझ रहे हैं सब लोग, इल्जाम लगा रहे हैं। इस वक्त तो सब इस कदर शशदर रह गए थे, शौक किसी कैफियत में थे कि कुछ सोचा ही ना गया। अम्मी के लहजे में तासुब था, वरना उसी वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। यही तो गलती हुई हमसे। हमें कुरान पाक पर हाथ रखवा कर सच और झूठ का उगलवा लेना चाहिए था। सायरा को भी अब सख्त मलाल हो रहा था। छोड़ो बेटी, अगर ये सब इल्जाम था, ड्रामा था, मेरे बेटे पर बाकायदा प्लानिंग के तहत इल्जाम तराशी की गई थी, तो इल्जाम लगाने वाला कुरान पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने से भी दरेग न करता। ऐसे लोग जो दूसरों पर बहुतान लगाते हैं बड़े बुज़दिल होते हैं, अपनी रुसवाई से डरते हैं। उनका पोल खुला तो लोग उन्हें बुरा भला कहेंगे। इस खौफ से वो खुदा के कहर को भी भूल जाते हैं। अम्मी दुख से बोली। गलत कुरान भी उठा लेती उस वक्त वो। लेकिन फिर भी अम्मी, शाहिद भाई की तरफ से जो मैल हम लोगों के दिलों में आया है, कम से कम वो तो साफ हो जाता। प्लीज अम्मी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप नहीं बेटा, अम्मी ने खौफजदा होकर बात काट दी। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो फाइक भी इस बात के लिए तैयार हो गया है। एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा, एक नई मुसीबत, खानदान में रुसवाई अलग होगी। अब भी कम बातें नहीं बन रही हैं। मैंने हर एक से यही कहा है कि शाहिद को कोई और लड़की पसंद आ गई है, और मैं ये रिश्ता खत्म करके भाई से ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहती। इसीलिए अपने दूसरे बेटे के लिए बड़ी मुश्किल से इन लोगों को मनाया है। लेकिन अम्मी, ये ज्यादती है। हम लोग जानबूझकर बेवकूफ बन रहे हैं। कम से कम आज की निम्रा की खुशी देखकर तो मुझे यही यकीन हो चला है। सायरा बेबसी से दोनों हाथ मलने लगी। बस ये समझो बेटा कि तकदीर में यही लिखा था। निम्रा का जोड़ फाइक से था, कोई बहाना तो बनना था। बहाना नहीं, साजिश। साजिश अम्मी, कुछ भी हो, बस मुझसे वादा करो अपनी सोच को कभी भी जिंदगी भर किसी के सामने नहीं लाओगी। वादा करो मेरी बेटी। अम्मी ने गुलगीर आवाज में कहकर उसके दोनों हाथ थामे तो वो उनके हाथों पर सर टिकाकर फूट फूट कर रो दी। अरीबा ने महसूस किया था कि शाहिद में कुछ तब्दीली आई है। वो पहले की तरह हर वक्त घर से बाहर नहीं रहता था। हाँ, अब भी वो घर में सबके सामने बैठने के बजाय तन्हा ही रहता।
वो घर में रहने लगा था, यही बहुत था। अक्सर रात में जब सब टीवी लाउंज में जमा हो जाते या सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके होते, तो वो लॉन में कितनी देर तक टहला करता था। समन आंटी बहुत कुड़ती, वो उसे पहले की तरह सबके दरमियान हंसते बोलते देखना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। घर में रहकर भी तन्हाई उसकी साथी थी। उस शब जब अपने कमरे की खिड़की में उसने शाहिद को तन्हा लॉन में टहलते देखा, तो जाने किस जज्बे के तहत वो भी बाहर निकल आई। उसे देखकर वो चौंका, फिर अगले ही लम्हे अपनी असली बेनियाजी से यूं अनजान बन गया जैसे उसे जानता ही ना हो। क्या मैं आपके साथ कुछ देर टहल सकती हूँ? अरीबा के पूछने पर उसने अपनी नजरें उठाई, उसे देखा, फिर अजीब से तासुर के साथ बोला, क्यों? क्यों की क्या बात है? आप चहलकदमी कर रहे हैं, मेरा भी चहलकदमी को जी चाह रहा है, तो आपके साथ क्यों नहीं जा सकती? वो अपने मखसूस अंदाज में बोली, इस वक्त इतनी रात गए, फसाना बन जाएगा। वो तंजिया मुस्कुराया, अच्छा कौन बनाएगा अफसाना? है एक बहुत अच्छी राइटर, अपनी कहानी को खुद डायरेक्ट करती हैं और खुद ही एक्टिंग भी करती हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? वो हैरानी से उसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगी। है एक, उसे फिर से वही सब याद आने लगा, आंखों में तारीख से साए लहराने लगे। एक बात कहूँ शाहिद भाई, खुश रहने की कोशिश किया करें, दूसरों को भी खुश रखा करें। जिंदगी के अगले लम्हे की खबर नहीं होती, कम से कम हमारे बाद लोग हमें अच्छे लफ्जों में याद तो करेंगे। आप ये सब कह सकती हैं क्योंकि जिंदगी ने आपको बहुत कुछ दिया है, जबकि इसी जिंदगी ने मुझसे मेरा एतमाद, भरोसा, खुशी, सुकून सब छीन लिया है। जाने आज क्यों उसका दिल चाह रहा था कि किसी से वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। पूछ सकती हूँ क्यों? देखे, मैं आपसे हमदर्दी नहीं कर रही, ना ही आपके दोस्त होने का मेरा दावा है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इंसानों के दरमियान एक ताल्लुक होता है, यगांगत और खुलूस का। इस नाते मैं और आप अजनबी नहीं है। प्लीज चली जाए यहाँ से, छोड़ दे मुझे तन्हा, खुदा के लिए। वो चीख पड़ा तो उसके मिजाज की एकदम तब्दीली पर हैरान रह गई, फिर उसे उसके हाल पर छोड़कर अंदर चली आई। सामने बरामदे में ही निमरा भाभी चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी। हैरत है, किसी से तो बातें करने लगे मौसूफ। अजीब है ये शाहिद भाई भी, एकदम रैश हो जाते हैं। कोई गिरा है इनकी शख्सियत में, जिसका सिरा कहीं खो गया है, उलझी हुई है पूरी शख्सियत। तुम्हें क्या फिक्र है, छोड़ दो उसे उसके हाल पर, वो इस काबिल नहीं है कि उससे हमदर्दी की जाए। उनके लहजे में तहकीर थी। भाभी, आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए, वो आपके देवर हैं। तुम नहीं जानती उसने मेरे साथ क्या किया है। वो जानबूझकर उसका दिल शाहिद से खराब करना चाहती थी। आपके साथ? उसे हैरत हुई। अरीबा, कहाँ हो भाई, इतनी अच्छी फिल्म आ रही है। सायरा उसे ढूंढती हुई सामने से आ रही थी। फिर कभी बताऊंगी, वो सायरा की वजह से टाल गई। लेकिन एक रोज जब घर में सिर्फ सायरा और वो थी, उसे फिर से शाहिद से बात करने का मौका मिल गया। टीवी पर कोई अच्छी सी फिल्म आ रही थी जो सायरा बहुत शौक से देख रही थी। उसे मालूम था शाहिद अपने कमरे में है। सायरा, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? स्कूल से बैठकर फिल्म देखो। भूख लग रही है, कुछ बनाकर लाती हूँ, सैंडविच वगैरह। वो उसे टालकर शाहिद के कमरे की जानिब आ गई, लेकिन अब उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसी वक्त उसके कमरे का दरवाजा खुला, शाहिद बाहर निकला। उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर वो हैरान रह गया। वो मैं पूछने आई थी, मैं अपने और सायरा के लिए सैंडविच और कॉफी बना रही हूँ, आप लेंगे? उसने जल्दी जल्दी सफाई पेश की। जी नहीं शुक्रिया। वो पता नहीं किस लिए बाहर निकल रहा था, उसे देखकर वापिस अंदर चला गया। मुझे मालूम है आपको भूख लग रही है, क्योंकि आपने दोपहर में भी नहीं खाया था। फिर ख्वामखा नखरे क्यों दिखा रहे हैं? मैं ला रही हूँ और आपको खाना पड़ेगा। वो बाहर से बुलंद आवाज में बोलकर लौट आई। मायोनीज, केचप, चीज और ब्रेड निकाल कर रखे। बॉइल्ड चिकन का एक पैकेट फ्रीजर से निकाला, फिर उसे गर्म करने लगी। उसी दौरान उसे मुसलसल शाही का ख्याल आता रहा। कॉफी और सैंडविच सायरा को देकर वो शाही के लिए लेकर उसके कमरे की तरफ चली आई। वो अपने कमरे में नहीं था, बल्कि लाउंज में टीवी देख रहा था। आप यहाँ क्यों आ गए? उसने ट्रे साइड टेबल पर रखी। मैं आप कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर आपको मेरे कमरे में देखकर फिर कोई फसाना बना तो? उसका लहजा बेहद संजीदा था। लेकिन क्यों? वो अब सब कुछ जान लेना चाहती थी। कौन कहेगा? मुझे मालूम है आपको सब कुछ जान लेने के शौक में भाग भाग कर मेरे पास आती हैं। बड़ा तजस्सुस है आपको, है ना? वो तंजिया मुस्कुराया तो अरीबा एकदम खड़ी हो गई। गलत सोचते हैं आप। आपके बारे में जानना सिर्फ मेरा तजस्सुस नहीं है, ना ही औरत की असली फितरत, बल्कि इसका बुनियादी मकसद आपको दोबारा जिंदगी की जानिब लौटते देखना है। और आप जो किसी बात पर जमाने भर से और अपने घर वालों से खफा हैं, दोबारा से उनमें हंस बोले, यही मैं चाहती हूँ। आप नहीं जानते तन्हाई का दुख। आपने तो कुछ अरसे तन्हाई का जहर पिया है, लेकिन
मैं एक उम्र से, बल्कि छोटी सी उम्र से तन्हा हूँ। माँ बचपन में साथ छोड़ गई थी, बहन भाई कोई था नहीं। धदियार में भी सिर्फ दादी थी, 12 साल की थी तब वो भी इस दुनिया से चली गई। ननिहाल में किसी के पास इतना वक्त नहीं था शायद कि इस बच्ची को याद कर सके जो 7 साल की उम्र में बिन माँ की हो गई थी। एक पापा ही है, लेकिन वो भी अपनी जॉब की वजह से रात गए घर में घुसते थे। पापा ने एक फुल टाइम मुलाजमा रख रखी थी, लेकिन वो कभी माँ ना बन सकी मेरे लिए। उसे सिर्फ अपने कामों से गर्ज होता था। मैं दीवारों के दरमियान पली हूँ शाहिक भाई, लोगों को तरसती रही हूँ सारी उम्र। लेकिन आप तो खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हर रिश्ता दिया है आपको। माँ बाप बहन भाई, उनकी कदर करे। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उन्हें माफ कर दे, उनसे दूर ना रहे, उनके करीब आ जाए। लोग तो तरसते हैं अपनों के लिए, आपके अपने आपके पास हैं और आप भागते हैं उनसे। वो नम आंखों से कह रही थी। मेरे अपने? वो फटफड़ा। ये मेरे अपने हैं जो मुझे जानते तक नहीं? मेरा बचपन इनकी आंखों के सामने गुजरा है, मेरा हर पल हर सोच इनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। फिर उन्होंने ये कैसे समझ लिया, उस पर कैसे यकीन कर लिया कि मैं ऐसी घटिया हरकत करूंगा? उस रात पहली बार मैं अपने वालिदैन से छुपकर घर से बाहर रहा था, और वो मेरी पहली गलती मेरे लिए एक ऐसा इल्जाम बन गई, ऐसा धब्बा बन गई मेरे माथे का, जिसे मैं जितना छुड़ाना चाहता हूँ वो उतना ही गहरा होता चला जाता है। अरीबा सुन रही थी, वो उसे बोलने देना चाहती थी। वो कहता रहा, अपने दिल का एक एक दाग दिखाता रहा। उसे अपनों से कैसे दूर कर दिया गया, उससे किस तरह उसका यकीन छीन लिया गया। उसके जख्मों के सारे टांके उधड़ गए थे। और आपने अपनी सफाई में कुछ नहीं किया। मैं होती आपकी जगह तो ऐसा इल्जाम लगाने वाले का मुंह नोच लेती। अगर मैं हक पर हूँ, सच्ची हूँ, तो किसी की मजाल नहीं कि मुझे झुटला सके। अरीबा ने हैरत से 6 फीट लंबे चौड़े इस शख्स को देखा जो बज़ाहिर इतना कमजोर नहीं लगता था। जब आपके अपनों की आंखों में आपके लिए शक के साए हों, चेहरे पर बदगुमानियां फैली हों, तो आप अंदर से टूट जाते हैं अरीबा। मैंने भी अपनी सफाई पेश करनी चाहिए थी, चीख चीख कर, लेकिन जब मेरा यकीन नहीं किया गया। मेरे अपने घर वाले एक साजिशी लड़की की हर बात को सच समझ रहे थे और मुझे झूठा, तो मेरा खुद पर से यकीन खत्म हो गया। मैं क्यों मजीद सफाइयां पेश करता रहता? क्या वो लोग मुझे जानते नहीं थे? फिर क्यों यकीन कर लिया उन्होंने इसका? इस वक्त तो मैंने यही समझा कि खुद निम्रा को भी कोई गलत फहमी हुई है, इसीलिए वो बदगुमान हो गई है मुझसे। लेकिन जब मैंने देखा कि उसकी आंखों में फाइक भाई की वाबस्तगी पर कितनी ही कंदीलें जल उठी हैं, तो मैं समझ गया। इतना खुश तो वो मुझसे बंधन बांध कर भी नहीं थी। मुझे उससे कोई शिकायत ना होती अगर उसने मेरे साथ वो खेल ना खेला होता। मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा नहीं, वो खुद मेरी जानी बड़ी थी। फिर पीछे हटना ही था तो कोई और बहाना बना लेती, लेकिन उसने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया, सबसे बढ़कर मेरे माँ बाप का मुझ पर से एतमाद। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, वो कभी खुश नहीं रह सकेगी। शाहिद की आवाज में इतनी नफरत सी कि वो अंदर से कांप गई। जो कुछ निम्रा भाभी ने आपके साथ किया शाहिद भाई, वो वाकई माफ कर देने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह खुद माफ कर देता है और माफ करने वालों को पसंद करता है। आपको मालूम होगा कि अगर उसके बंदे ने किसी दूसरे का दिल दुखाया हो तो जब तक वो ना माफ कर दे, खुदा भी उसे माफ नहीं करता। ऐसा शख्स तो जन्नत में भी नहीं जा सकेगा। उसे दुनिया में जन्नत मिल गई है, अल्लाह ताला की जन्नत लेकर वो क्या करेगी? वो जहर भरे अंदाज में बोला। फिर भी आपको 2 मशवरे जरूर दूंगी, जो हो गया उसके लिए अपनी आने वाली जिंदगी बर्बाद मत करे। लौट आए अपनों की जानिब और निम्रा भाभी को माफ कर दे, बड़ा सुकून मिलता है इससे। वो उठने लगी तो वो तन से मुस्कुराया। मशवरे देना बड़ा आसान है अरीबा बीबी, लेकिन जब खुद पर बीतती है तो ज़र्फ का पता चलता है। उसकी बात पर चंद लम्हों तक वो चुप रही, फिर संजीदगी से कहने लगी। शायद आप ठीक कहते हैं, किसी को मशवरा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक बार इस पर सोचिएगा जरूर, खासकर पहली बात पर। वो उठकर चली आई। फिर लोगों ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो फिर से अपनों की तरफ लौट आया था। पहले किसी बात तो नहीं थी, लेकिन ये भी गनीमत था। खासकर समन आंटी बहुत खुश थी। अरीबा ने ये बात खासकर नोट की थी कि उसकी ये वापसी निम्रा भाभी को बहुत नागवार गुजरी थी। शायद उन्हें डर था कि वो वाकया लोगों को फिर से याद ना आ जाए, जिसे सब तकरीबन भुला चुके थे, और इस वाकये को याद करने में उनकी पोल खुलने का भी खदशा था। खदशा तो इन्हें इस वक्त भी था कि कहीं उनसे इस सिलसिले में हलफ ना लिया जाए, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि वो अल्लाह से बाद में माफी मांग लेंगी, लेकिन खुद को झूठा साबित नहीं होने देंगी। अब सिर्फ इश्क का ही नहीं, उनकी अपनी जिंदगी का भी मामला था, और वो इस तरह फाइक को भी खो सकती थी। उनकी शादी को 6 साल होने को आ रहे थे, लेकिन अभी तक उनकी गोद खाली थी। हर लम्हा उन्हें धड़का लगा रहता था कि फाइक उन पर दूसरी बीवी ना ले आए। मियाँ बीवी के रिश्ते से नाजुक कोई और रिश्ता इस दुनिया में नहीं होता। कभी कभी तो औलाद भी उसे मजबूत करने में नाकाम रहती है। फिर वो तो बे औलाद थी, किस तरह बांध कर रखती फाइक को, और अब ये शाहिद फिर से एक खौफ बनकर उनकी जिंदगी में दाखिल हो गया था।
اس کا الگ थलग रहना उन्हें मुतमईन रखता था, लेकिन अब तो जैसे उन्हें लगता कि इसकी तंजिया, नफरत से भरपूर आंखें हर घड़ी इनके वजूद के आर पार हो जाती हैं। वो मुझसे बदला लेगा, उसने मुझे माफ नहीं किया है। उन्हें शाहिद के चेहरे की नफरत होलाने लगती। फिर वो मुझे क्यों माफ करेगा? मैंने क्या अच्छा किया था उसके साथ? कभी कभी उन्हें शिद्दत से एहसास होने लगता, लेकिन मैं और क्या करती? सारी जिंदगी फाइक मेरी आंखों के सामने रहते और मैं किसी और की होकर उनके फिराक में सुलगती रहती। उसका हौसला नहीं था मुझ में। बचपन से जो चाहा हासिल किया मैंने, फिर फाइक मेरे क्यों नहीं हो सकते थे? कोई और रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास। सुनो अरीबा, एक बात कहूँ तुमसे। सायरा को कभी कभी जाने क्यों लगता कि एक अरीबा की जात ही ऐसी है जो शाहिद को फिर से जिंदगी की जानी मुकम्मल तौर पर लौटा सकती है। हाँ, वो पूरी दिलचस्पी से कोई किताब पढ़ रही थी। तो ये किताब तो रखो बाबा। लो रख दी, अब कहो। अरीबा ने किताब रख दी। तुम्हें शाहिद भाई कैसे लगते हैं? क्या मतलब कैसे लगते हैं? जैसे हैं वैसे ही लगते हैं। तुम शादी करोगी उनसे? हैं? अरीबा को अचंभा हुआ। ये ख्याल क्यों आया तुम्हारे दिल में? बस यूं ही। दरअसल उनकी शादी एक ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो पुरखलूस हो, हमदर्द हो और उन्हें मुकम्मल तवज्जो दे सके। चलो, तुमने ये इतराफ तो किया कि मैं पुरखलूस और हमदर्द हूँ। वो हंसी। हम लोगों ने अच्छा नहीं किया उनके साथ। हम सब ने मिलकर उन्हें जिंदगी से दूर कर दिया, लेकिन कब तक? तुम नहीं जानती वो जिंदगी को कितना एंजॉय करते हैं। लेकिन एक रोज। मैं जानती हूँ सब, एक एक बात। अरीबा ने इसे टोका तो वह हैरान रह गई। और मेरा ख्याल है तुम सब इंतहाई। आई एम सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हर बात वाजे थी। तुम सबको समझ लेना चाहिए था। फिर तुम लोग शाहिद भाई को जानते भी थे, लेकिन बेवकूफ बन गए। पता नहीं क्या हो गया था हम सबकी अकलों को। पर्दा पड़ गया था शायद। जो कुछ निम्रा भाभी ने कहा आंखें बंद करके यकीन करते चले गए। कभी कभी तो मेरा इन्हें भाभी तक कहने को दिल नहीं चाहता। मेरे भाई की गुनाहगार है वो। कम से कम अम्मी और मैं तो जान गए हैं, लेकिन लब बंद रखने पर मजबूर हैं। झूठे को तो सात कब्र तक नहीं छोड़ना चाहिए। फिर किरदार की बात आ जाए तो मुझे हैरत है, तुम लोग शाहिद भाई क्यों खामोश हो? तुम लोगों ने कुरान क्यों नहीं उठवाया? आया था ख्याल, लेकिन बाद में। इस वक्त तक देर हो चुकी थी। फिर अम्मी का ख्याल था कि अगर वो झूठी है तो झूठा कुरान उठाने से दुरेग नहीं करेंगी। ख्वामख्वाह कुरान की बेहुरमती होती। ये तो कोई बात ना हुई। मेरी तो समझ से बाला तर है कि तुम लोग जान भी गई फिर भी खामोश रही। मैंने कहा ना, उस वक्त तक देर हो चुकी थी। फिर यकीन भी नहीं था, बस वहम था हमें। इन दिनों शाहिद भाई हर एक से कट से गए थे। किसी से भी किसी किस्म का ताल्लुक तक नहीं रखा था उन्होंने। खाना तक बाहर खाते थे। अम्मी की भी किसी बात का जवाब नहीं देते थे। अम्मी बोल बोल कर थक जाती, वो खामोश आंखों पर हाथ रखकर लेटे रहते। अम्मी रोकर चुप हो जाती, फिर लौट आती। गलती उनकी भी थी। बस एक बार के अलावा उन्होंने कभी सफाई पेश ही नहीं की अपनी। अब्बी जान और फाइक भाई तो अभी तक उन्हें कसूरवार समझते हैं। और हो सकता है हम ही गलत सोच रहे हों, निम्रा भाभी सही हों और वही गलत हों। आखिर कभी तो कहते वो कुछ अपनी सफाई में। नहीं सायरा, कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। इंसान एकदम शौक रह जाता है कि हमने तो ऐसा नहीं किया। सबसे बढ़कर जब अपनों की आंखों में शक के साए नजर आते हैं, फिर खुद उसका अपने आप पर से भरोसा और एतमाद उठ जाता है। कुछ इंसान ऐसे ही होते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता ना कि इतने करीब रहने वाले उनके अपने भी उन पर शक कर सकते हैं। शाहिद भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। उन्हें यकीन नहीं था कि निम्रा भाभी उनके साथ ऐसा करेंगी। तुमने खुद इतनी चाह से उनके साथ मंगनी की थी। फिर तुम सब घर वाले भी उनसे बदगुमान हो गए तो वो सह नहीं सके, तो उन्होंने चुप की चादर ओढ़ ली। तुम सबसे कट गए। उन्हें अपनी सफाई में कुछ कहना बेकार लगा। खैर, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब जबकि वो कुछ कुछ हमारी जानी पलट आए हैं, इन्हें एक ऐसी साथी की जरूरत है जो इन्हें इनका मुकम्मल एतमाद लौटा सके, जो उनकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती हो और उन पर भरोसा करती हो। उसे यकीन हो कि वो उसे वैसे नहीं थे जैसा उन्हें समझ लिया गया था। सायरा बेहद संजीदा थी। अरीबा चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर उसी के अंदाज में बोली, मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा उनके लिए। हाँ, मुझे उनसे हमदर्दी जरूर है। दूसरा, मेरी शादी का फैसला मेरी नहीं मेरे पापा की मर्जी से होगा। मैं कोई हतमी फैसला तनहा नहीं कर सकती। तो ठीक है, अभी जान अंकल से फोन पर बात कर लेंगे, लेकिन तुम्हें अगर कोई एतराज ना हो तो। शाइक भाई शादी के लिए तैयार हो गए हैं? वो पूछ बैठी। अभी अम्मी ने कोई बात नहीं की इनसे, लेकिन तुम मान जाओ तो पूछेंगे, ताकि इन्हें मजीद कोई धचका ना पहुंचे। वो पहले से ही अंदर से टूट चुके हैं। पहली बार अरीबा को एहसास हुआ कि सायरा अपने भाई के लिए नरम एहसास रखती है, वरना वो तो उसे लाउबाली और लापरवाह लड़की समझती थी। मैं खुद से कुछ नहीं कह सकती सायरा। पापा को एतराज ना हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इस सिलसिले में कभी नहीं सोचा, ना आज तक कोई आइडियल वगैरह बनाया है। शुक्र है खुदा का। मुझे तो बड़ी फिक्र थी कि तुम्हारी पढ़ाई भी तकरीबन खत्म है।
फिर तुम चली जाओगी। और अरीबा, मेरी अव्वलीन ख्वाहिश है कि तुम हमेशा हमारे यहाँ रह जाओ। उसने बेहद प्यार से अरीबा के दोनों हाथ थामे, वो भी खुशदिली से मुस्कुरा दी। फिर यूं हुआ कि जल्द तमाम मामला तय पा गए। पापा खुद पाकिस्तान आए। वो इस रिश्ते से बहुत खुश थे। उन्हें इस घर का माहौल बहुत पसंद था। फिर वो शाहिद में भी एक नुमाया तब्दीली देख रहे थे। वो पहला जैसा नहीं रहा था। उनसे काफी अच्छी तरह मिला था। उन्होंने अकेले में अरीबा से भी इस सिलसिले में बात की थी, और जब उसने सब उन पर छोड़ दिया तो वो मुतमईन होकर हाँ कर बैठे, और यूं उसे शाहिद से मुंसलिक कर दिया गया। इन दिनों वो पापा के साथ वापस अपने घर लौट आई थी। पापा सिर्फ 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे, इसीलिए उन्होंने तैयारी में बहुत जल्दी की थी। इस दौरान उसकी एक बार भी शाहिद से कोई बात नहीं हुई। उसका ख्याल था कि शाहिद खुद इस सिलसिले में उससे बात करेगा, लेकिन वो खामोश रहा तो खुद अरीबा ने कोई पेशरफ्त करना मुनासिब नहीं समझा, और इसी तरह एक दिन वो इनकी जिंदगी में शामिल हो गई। उसने महसूस किया था कि निम्रा भाभी बिल्कुल खुश ना थी, और ना उन्होंने इस शादी के किसी काम में किसी किस्म का कोई हिस्सा लिया था। बिल्कुल ना लगता था कि ये शादी उनके घर में हो रही है। हर शख्स उनके इस रवैये पर अलग अलग अंदाज में सोच रहा था। सायरा और समन आंटी का ख्याल था कि वो अंदर से अपनी शर्मिंदगी के बाइस कुतरा रही हैं। अभी जान और फाइक भाई सोच रहे थे कि चूंकि शाही की तरफ से उन्हें दुख पहुंचा था, इसीलिए वो उसके किसी मामले में आगे बढ़ने और हिस्सा लेने को तैयार न थी। जबकि अरीबा का ख्याल था कि जो कुछ वो कर चुकी थी अब इसका मुदावा तक नहीं कर सकती थी, और उन्हें खौफ था कि वो शाहिद, जो अब तक जाने के जज्बे या मसलहत के तहत खामोश था, कहीं एकदम फट न पड़े और उसका भरम खुल न जाए। खुद शाही के सिलसिले में बिल्कुल खामोश था। वो कुछ सोचना या कहना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे निम्रा से इस कदर नफरत थी कि वो एक लम्हे के लिए भी उनकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यूं अरीबा रुखसत होकर उसकी जिंदगी में चली आई। पहली बार उसके पास जाते समय जाने क्यों वो बेहद मुस्तरब था, हालांकि जानता था कि अरीबा से कोई बात छुपी हुई नहीं है। मुझे मालूम है तुम सब जानती हो, लेकिन तुम्हें एक ऐसे शख्स से मंसूब करके तुम्हारे साथ ज्यादती की गई है, जिसका किरदार खुद उसके घर वालों की नजरों में मशकूक है। यकीन करो, मुझे बहुत आखिर में पता चला जब अंकल पाकिस्तान आ गए। तब तक अभी जान उनसे बात कर चुके थे। मैंने इनकार किया तो उसकी बात पर चौंक कर अरीबा ने अपने झुके हुए सर को उठाया तो वो उसकी जिंदगी में जबरदस्ती लाई गई थी। शाहिद ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली, फिर आहिस्तगी से मुस्कुराया। तुम ये ना सोचना कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था। तुम बहुत अच्छी और मुकम्मल लड़की हो, जिसे अपनाकर कोई भी शख्स खुद को खुशनसीब समझ सकता है। लेकिन अरसा हुआ मैंने अपने नसीब पर भरोसा करना छोड़ दिया है। फिर तुम जानते बूझते क्यों इस आग में कूद गई? आपने ये कैसे सोच लिया कि आपका साथ मुझ पर जबरदस्ती ठोंसा गया है? फी जमाना वो दौर नहीं रहा जब लड़कियों की जबरदस्तियां शादियां कर दी जाती थी। मुझसे पापा ने पूछा था और मैंने उन पर एतमाद करते हुए सब कुछ उन पर छोड़ दिया था। रही वो बात जिसकी बिना पर आप खाइफ हैं, तो वो बात ना मुझसे छुपी है ना पापा से। समीर अंकल ने पापा को हर बात खुलकर बता दी थी। खुद पापा ने उनके सामने यही ख्याल जाहिर किया कि आपको किसी साजिश का शिकार बनाया गया है। वो आपको पसंद करते हैं, क्यों ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्लीज आप सबसे पहले तो ये ख्याल जहन से निकाल दें कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, क्योंकि मैं इतनी सीधी नहीं हूँ कि कोई मेरे साथ जबरदस्ती करे। अच्छा, वो उसकी बात पर मुस्कुराया। मैं उसे धमकी भी समझ सकता हूँ। समझे? वो भी मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट शाहिद के दिल पर छाई बरसों की गर्द को साफ कर गई। वो तकदीर से ज्यादा लोगों से शाकी था, लेकिन इस वक्त वो सब कुछ भूल गया। यूं जिंदगी ने एक खुशगवार मोड़ लिया था। अरीबा की कुर्बत ने उसे सब कुछ भुला दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ रहना नहीं चाहता था। अरीबा, मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ ना रहें, बल्कि अलग घर लेकर रहें। शादी के एक ही माह बाद वो एक दिन बोला तो वो हैरत से उसे देखने लगी। क्या मतलब? अलग क्यों रहे हम? बस मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। इस सिलसिले में तुम्हारे पापा को लिखने वाला हूँ मैं। हम इस मुल्क में भी नहीं रहेंगे। क्यों शाहिद, क्या आप फरार चाह रहे हैं यहाँ से? मुतमईन नहीं है मेरे साथ? वो बेचैन हो गई। ऐसा नहीं है अरीबा, तुमने मुझे इतनी खुशियां दी हैं, मेरी जात का एतमाद लौटाया है मुझे, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? लेकिन मैं यहाँ रहा तो पागल हो जाऊंगा। लेकिन अंकल और आंटी, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने आपको उनसे जुदा कर दिया? उनसे मैं बात कर लूंगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन इस तरह तो आपको चाहिए यहीं रहकर निम्रा भाभी के लगाए हुए इल्जाम को गलत साबित करें। नहीं अरीबा, जो हो गया मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। फाइक भाई की हंसी बलती जिंदगी को नहीं उजाड़ सकता मैंने अपना मुकदमा अल्लाह के रूबरू रख दिया है, वही इंसाफ करेगा। अरीबा शाही की बात पर शशदर रह गई। किस कदर हैरत अंगेज थी ये तब्दीली। कहाँ थी वो नफरत? उसकी मंजिल पर था जहां से उसे हर चीज धुंधली नजर आ रही थी, लेकिन अब मुझे मालूम है तुम्हें हैरत हो रही है, लेकिन ये तब्दीली सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है। मैं खुदा का जितना शुक्र करूं उतना कम है। तुम इतनी अच्छी हो कि मैं हर बात भूल गया हूँ। सोचो, अगर निम्रा जैसी औरत मेरी जिंदगी में शामिल होकर मेरी जिंदगी अजाब बना देती तो? उसकी साजिशी सोच ने तमाम जिंदगी रोते रहने से मुझे बचा लिया।
अब रह गया मेरे माथे का दाग तो उसका मामला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ रहकर मैं तमाम जिंदगी इस एहसास से मगलूब रहूंगा। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन निम्रा का वजूद मेरी इस कोशिश में हाइल हो जाता है। मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, और यह तभी मुमकिन है जब मैं ज़हनी तौर पर मुंतशिर होने से बचा रहूँ। जैसी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें। वो खुद उसकी ख्वाहिश को बिखरा हुआ नहीं, मुकम्मल देखना चाहती थी। फिर अम्मी और अब्बी जान को उसने राजी कर ही लिया। खुद अरीबा ने इन दोनों को समझाया था कि ये जुदाई वक्ती और ज़रूरी है। एक दिन वो इनके पास ही लौट कर आएंगे। तब तक इंशाल्लाह शाहिद भी संभल जाएगा। और इन दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें इजाज़त दे दी। 2 साल बाद सायरा की शादी पर वो लोग पाकिस्तान आए तो साथ भी उनके साथ था। अब्बी जान की तो आंख का तारा था। अरीबा ने महसूस किया कि निम्रा भाभी बहुत बुझी बुझी सी हैं। उनका रंग रूप मानित पड़ गया था। वो सबसे अलग थलग नजर आती थी। साद को देखकर उनका चेहरा जर्द पड़ गया था। शाहिक और अरीबा के मुतमईन और शाद चेहरे उनके दिल में कसक पैदा करने लगे। कितने खुश थे वो दोनों। शाहिक में भी नुमाइयां तब्दीलियां आई थी। वो इंतहाई खुशमिजाज हो गया था और अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन नजर आता था। वो खुद उनके पास क्या था, तही दामा रह गई थी वो। जिस फाइक के लिए उन्होंने अपने खुदा की नाराजगी की परवाह नहीं की थी, आज वही उनसे उखड़े उखड़े नजर आते थे। जिस दिन से उन्हें पता चला था कि निम्रा कभी मां नहीं बन सकती, उस दिन से वो अब बाहर दिलचस्पियां ढूंढने लगे थे। निम्रा का वजूद अब उनके लिए ना होने के बराबर रह गया था। फाइक भाई तो अब दिनों बात नहीं करते थे निम्रा भाभी से। रात गए लौटते हैं, छुट्टी वाले दिन भी जाने कहाँ गायब रहते हैं। सायरा ने राजदारी से अरीबा को बताया तो उसे बहुत दुख हुआ। आंटी और अंकल ने नहीं समझाया उन्हें। वो तो समझाते हैं जब फाइक भाई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। दरअसल उनकी ख्वाहिश है कि उनके बच्चे हों, और मेरा ख्याल है ये फितरी ख्वाहिश है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करे। अब इसमें निम्रा भाभी का क्या कसूर है। बहुत दिल दुखाए हैं उन्होंने, अब भुगते। सायरा ने नाराजगी से कहा, फिर कोई दूसरी बात करने लगी। फिर कुछ साल और दियारे वतन में रहकर आखिर उन्होंने लौटने का इरादा कर ही लिया। खुद पापा भी अब वापस पाकिस्तान जा रहे थे। इन्हीं दिनों सायरा के फोन से उन्हें पता चला कि फाइक भाई ने दूसरी शादी कर ली है, और निम्रा भाभी के बहुत शोर मचाने के बावजूद भी वो अपनी नई बीवी को लेकर वहीं आना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ निम्रा भाभी के साथ, बेचारी। अब माँ ना बन सकने में उनका उनका तो कोई कसूर ना था। ये तो अल्लाह की देन है, जिसे नवाज दे। अरीबा को बेहद अफसोस हुआ। शाहिक ने एक खामोश नजर उस पर डाली, मगर खामोश रहा। फाइक भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या उसे वैसा करना चाहिए था जो उसने मेरे साथ किया। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। वो अखबार तय करके वहां से चला गया। उस दिन अरीबा को महसूस हुआ वो भूला नहीं था, अलबत्ता भूलने की कोशिश जरूर कर रहा था। और आज आम इंसानों की तरह खुद को दुख पहुंचा देने वाली हस्ती को अजियत में सुनकर खुश हुआ था। इस बार घर का माहौल फाइक भाई की शादी करने की वजह से कुछ उलझा हुआ था। मामू और मुमानी सख्त नाराज थे। निम्रा भाभी हर वक्त रोती रहती थी। खुद सुमन आंटी और समीर अंकल भी परेशान थे। फाइक भाई अपनी दूसरी बीवी को इसी घर में लाना चाहते थे, जबकि निम्रा भाभी इसके लिए तैयार नहीं थी। एक अजीब सा खिंचाव था। अरीबा और शाहिद की अपने दोनों बच्चों के साथ आमद वहां के हबसज़दा माहौल में एक खुशगवार झोंका बन गई। साद और मुजना की बातें सबको फिर से हंसने पर मजबूर कर देती थी। समीर अंकल ने उनकी आमद की खबर सुनकर ऊपर कमरे बनवा दिए थे, जहां वो आते ही शिफ्ट हो गए थे। खुद शाहिद यही चाहता था, लेकिन शाम में वो बच्चों के साथ नीचे उतरते थे, सबके साथ चाय पीते थे। समन आंटी तो चाहती थी कि चूल्हा एक ही रहे, लेकिन अरीबा ने रसानियत से उन्हें समझा दिया था। इस रोज भी वो सब नीचे लॉन में जमा थे। फाइक भाई भी इसी वक्त आए थे। उनका कहना था कि उनकी दूसरी बीवी यहीं सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती है, तो ये उसका हक है। हक की बात ना करो मियाँ, तुमने शादी करते वक्त माँ बाप से पूछा। समीर अंकल को गुस्सा आ गया। मुझे मालूम था आप इनकार कर देंगे। और अम्मी जान, मैं सारी जिंदगी यूं ही नहीं रहना चाहता था। मैंने कोई गैर शरई काम नहीं किया। औलाद की ख्वाहिश मुझे भी है। बहुत दिन सब्र किया मैंने। फिर मैं निम्रा को छोड़ तो नहीं रहा। दोनों के हकूक अदा करूंगा। लेकिन बेटा, निम्रा के दिल पर क्या गुजरेगी जब तुम्हारी दूसरी बीवी यहाँ आकर रहेगी। पहले ही तुम्हारे मामू मुमानी सख्त खफा हैं। समन आंटी बोली, आप समझाइएगा उन्हें। निम्रा के हुकूक में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन शाइस्ता को भी मैं कब तक किस तरह रखूं। उसके वालिदैन भी मुझ पर जोर दे रहे हैं। इतना बड़ा घर मौजूद ना होता, गुंजाइश ना होती तो और बात थी। अब मुझे नया घर लेकर रहने की क्या जरूरत है। वो तो जैसे तय किए बैठे थे। मैं सोचूंगी इस पर। पहले तुम्हारे मामू मुमानी से बात कर लूं। वैसे बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया। वो तासुब से बोली। माहौल अजीब गंभीर सा हो गया था। बाकी सब खामोश थे। उस रोज सायरा और उसके मियाँ भी आए हुए थे। सायरा की बेटी 10 माह की थी और इस वक्त शाहिद की गोद में थी, जबकि साद और मुजना वहीं खेल में मसरूफ थे। सायरा ने माहौल की गंभीरता को महसूस करके बात को तब्दील किया।
कुछ ही देर बाद सब हंसने बोलने लगे। सायरा के मियाँ अहमद की किसी बात पर शाहिक ने जोरदार कहकहा लगाया तो सबको अजीब सी खुशी हुई। शादी के बाद वाकई जिंदगी की जानिब लौट आया था वो। जाने किस बात पर वो सब जोर जोर से हंस रहे थे जब निम्रा की आमद हुई। बहुत खुश हैं आप सब मेरी बर्बादी पर? वो एकदम चीख कर बोली। सब खामोश हो गए। निम्रा, क्या बात है बेटी, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? समन आंटी ने पूछना चाहा, लेकिन वो इन्हें नजरअंदाज करके शाहिद की जानिब पलटी। और तुम तो सबसे ज्यादा खुश हो, सब कुछ मिल गया है तुम्हें, बीवी, बच्चे, घर और माँ बाप। और मैं इस तरह खाली हाथ हूँ। तुमने जो चाहा था तुम्हें मिल गया है, और क्या चाहिए तुम्हें? शाहिद ने उसके अचानक कहने पर इंतहाई संजीदगी से उसे देखा। मैंने यूं नहीं चाहा था। ये बटा हुआ शख्स, इसके लिए ये सब कुछ नहीं किया था मैंने कि ये दूसरी औरत लेकर मुझे छोड़ दे। मेरा दामन अल्लाह ने खाली रखा और तुम्हें सब खुशियां दे दी। ये बच्चे, घर की खुशियां। बेटा, इस तरह ना टोको मेरे बच्चे को, बड़ी मुश्किल से तो जिंदगी की जानिब लौटा है वो। समन आंटी तड़प गई। और मैं, मेरी जिंदगी? वो फिर चिल्लाई। उस शख्स के लिए किया था मैंने ये सब कुछ। उसने आगे बढ़कर फाइक का गिरबान पकड़ लिया। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए। तुम्हारी मोहब्बत में मैंने कितने दिलों को दुखाया। शाहिद पर इल्जाम लगाकर अपनी मंगनी खत्म की। हर पल तुम्हारी पूजा की, तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी जाना। तुम्हें पाना मेरी जिंदगी का मकसद था। इसके दरमियान जो जो आया मैंने उसे ठोकर मारकर हटा दिया। और तुमने ये किया मेरे साथ। एक औलाद की कमी की वजह से दूसरी बीवी ले आए मुझ पर। होश में आओ निम्रा, क्या कह रही हो तुम? फाइक ने उसके हाथ झटके। इस इंकशाफ पर सभी शशदर रह गए थे। खुद घर में दाखिल होते हुए मामू मुमानी भी पहुंचकर रह गए थे। हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने शाहिद पर इल्जाम लगाया था ताकि ये मंगनी टूट सके और मैं तुम्हें पा सकूं। और उसकी सजा मिली है मुझे कि आज ना मेरे पास औलाद की खुशी है, ना शोहर का प्यार। वो वहीं घास पर बैठकर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। शाहिद को लगा जैसे उसके फेफड़े खुली और साफ हवा में सांस से भर गए हों। उसके अंदर की घुटन यकलक खत्म हो गई। आज उसकी जात अपने घर वालों और अपनी शरीके हयात के सामने फिर से मोतबर हो गई थी। किसी में हिम्मत ना हुई कि उसे उठाता। सब इस समय अपने दिल में उसके लिए नफरत महसूस कर रहे थे। तुम निम्रा, तुमने ये सब किया? फाइक भाई तैश में उठे और उसे एक झटके से खड़ा कर दिया। तुमने सिर्फ अपनी जात के लिए एक अरसे मेरे भाई को और हम सबको एक जहनी अजाब में मुब्तला रखा। तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, इससे ज्यादा होना चाहिए था। अरे वाह, ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो तुम सब मिलकर इसके साथ ये सलूक कर रहे हो? अमीना मुमानी तिलमिलाती हुई आगे बढ़ी तो मामू ने एक जोरदार थप्पड़ इन्हें जड़ दिया। खामोश रहो तुम, तुम्हारी वजह से आज मुझे ये दिन देखने को मिला है। तुम माँ बेटी ने मेरा सर झुका दिया है। ये तो इन लोगों का ज़र्फ है कि आज तक खामोश रहे। वो आगे बढ़े और शाही के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुझे माफ कर दो बेटे, प्लीज मामू ऐसा ना करें। वो गड़बड़ाकर उठ गया और उनके हाथ थाम लिए। जो हुआ उसे भूल जाए। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, सब कुछ भुला चुका हूँ। ये तुम्हारा ज़र्फ है बेटा, वरना इसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया था उसके बदले में मैं तो तुम्हें। वो कहते कहते शिद्दत से रोने लगे। निम्रा का वजूद मजीद जमीन में धंसा चला गया। ये क्या कर बैठी थी वो अपने नफ्स के हाथों? फिर आज ही क्यों कर जज्बाती हो गई थी एकदम? तुमने अच्छा नहीं किया निम्रा मेरे बेटे के साथ। अगर अरीबा ना होती तो शायद वो इतनी आसानी से हम सब की जानिब ना लौट पाता। तुम कहकर तो देखती, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती ना करते। लेकिन इस तरह कोई करता है सिर्फ अपनी एक जात के लिए? तुमने हम सबको किस कदर दुखी किया। समन आंटी इंतहाई दुख से बोली तो वो उठकर उनके कदमों से लिपट कर मजीद जोर जोर से रोने लगी। आज बहुत अरसे बाद जाने क्यों लग रहा है अरीबा कि जैसे हर शायद धुलकर निखर कर मेरे सामने आ गई हो। मेरा वजूद जो एक अरसे से नामालूम बोझ तले दबा हुआ था, आज ताज़ा हवा में सांस ले रहा है। इस रात जब वो दोनों सोने लेटे तो शाहिद ने कहा, मैं जानती हूँ इतना अरसा मेरे एहसास दिलाने के बावजूद मुझे आप पर एतमाद है, आप अंदर से मुतमईन नहीं थे। मैंने बारहा महसूस किया लेकिन मसलहत के तहत खामोश रही। मुझे यकीन था कि एक दिन आप इस बोझ तले से निकल आएंगे। अल्लाह एक हद तक आजमाता है, उसकी खुशी भी एक हद तक होती है। बिल आखिर हर बात साफ होकर हमारी नजरों के सामने आ जाती है। और ये निम्रा भाभी जो आज एकदम अपनी गलतियों का एतराफ कर बैठी, इसमें भी इस ज़ाते बारी की रहमत थी जो आपको आपके ना करदा जुर्म से छुटकारा दिलाना चाहती थी। देखा उसने एकदम कैसे मजबूर कर दिया निम्रा भाभी को कि वो ये जानते हुए भी कि इस एतराफ के बाद खुद उनकी क्या हैसियत रह जाएगी, सब क्या सोचेंगे उनके बारे में। अपनी गलतियों का एतराफ कर बैठी। शाहिक ने सर हिलाया और इत्मीनान से अपनी आंखें मूंद लीं। खत्म शुद्ध। तो ये स्टोरी कंप्लीट हो गई और बहुत अच्छी स्टोरी थी।
اور مجھے فلو ہو رہا ہے اور میری آواز بڑی عجیب ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا برداشت کر لیجئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کائنڈلی پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بس یہی کرنا ہے، آپ نے بس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ کوئی آپ کی ریکویسٹ ہو تو ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ اسے پورا کر دوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔